invite you to share your expertise with our aspirants जो कि बहुत desperately wait कर रहे हैं, because आज का जो आपका session है वो इतना relevant और इतना sensitive issue है जितने हिमाचल state के ecological concerns. And friends, let me introduce sir formally. Dr. Suresh Chand Athri. He is a principal scientific officer at present working with the Department of Environment, Science and Technology with Himachal government. Sir, it is an honor for us, all of us, to have you here. Sir has completed his doctorate, his PhD in physical sciences. And students, मैं यहाँ ये share करना चाहूँगी कि इस समय आप यहाँ अपनी देवभूमि हिमाचल में इकोलॉजी इन्वायरमेंट के प्रति जितने भी अवेयरनेस कैंपेन्स देख रहे हैं, जितने भी आप ड्राफ्ट रूल्स रेगुलेशंस देख रहे हैं, उसके पीछे जो फोर्स है, उसके पीछे जो ब्रेन चाइल्ड है, वो अत्री सर है. जब आप ये कहते हैं बड़े प्राउडली, जब आप ये पढ़ते हैं कि हिमाचल स्टेट फर्स्ट स्टेट बनी जिसने जो है प्लास्टिक को जो है पॉलिथीन्स को बैन किया, सो ये सर का इनिशिएटिव था. जब हम ये कहते हैं कि थर्माकोल बैन हो गए और हम पत्तल मेकिंग पर आ गए, तो ये भी सर ने सिर्फ इंट्रोड्यूस नहीं किया, सजेस्ट नहीं किया, उसको इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट भी करवाया. राइट. जब आप हिमाचल स्टेट के इकोलॉजी पार्ट से स्टेट का क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान पढ़ते हैं, स्टेट का क्लाइमेट एजेंडा पढ़ते हैं जो नेशनल क्लाइमेट चेंज के साथ सिंक करता है, स्टेट की जितने लॉज रूल्स रेगुलेशंस हैं वो सर खुद ड्राफ्ट करते हैं. तो आप ये सोच सकते हैं कि आज हमारे लिए कितना बड़ा प्रिविलेज है. सर ने अपनी लाइफ के मोर देन 25 इयर्स जो है वो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल मैनेजमेंट को ही डिवोट किए हैं, और ये उनकी सर्विस है, ये उनकी सेवा है हिमाचल देवभूमि के लिए, क्योंकि वहाँ पर इकोलॉजिकल इश्यूज और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है. तो सर की जर्नी फ्रॉम बैनिंग टू all this polythenes to taking care of the plastic waste management, and even representing India, not only Himachal state, even India at the various international global forums, taking care of जो भी आप थ्योरी में पार्ट पढ़ते हैं कि हम बात करते हैं क्लाइमेट एक्शन चेंज प्लान्स की और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एग्रीमेंट्स की. सर हमेशा उसके साथ एज साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एसोसिएटेड रहे. राइट. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम सब के लिए. सो सर आई थैंक यू सो मच. आई विश वर्ड्स जो है वो सफिशिएंट होते. आई विश सिंसियरली कि शब्दों में हम ये पिरो कर आपको बता पाते कि इमेंस ग्रैटिट्यूड टू यू टू स्पेयरिंग योर टाइम. और सर यहाँ पर जो एस्पिरेंट्स हैं वो अभी प्रीलिम्स बिगिनर्स भी हैं, बट एज सच उसके साथ कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे भी हैं सर जो आपकी एबल गाइडेंस से अभी जो है दे विल फेस द इंटरव्यू आल्सो व्हिच इज सपोज्ड टू बी कंडक्टेड वेरी सून. एचएस एस्पिरेंट्स उसमें. So once again, sir, on the behalf of the institute and our dear students, I welcome you to this platform, and now stage is all yours. Thank you very much, ma'am, and I'm really delighted to always to interact with your students and the NITTR Chandigarh forum, which give really opportunity us also to interact with the future aspirants and the future bureaucrats and the aspirant students who really are competing for the competitives. Dear students, I really don't know in person you all, but I'm really quite impressed about your performance and the way till date your journey has been, and you are looking at the highest opportunities for the future careers. It's really great that a few of you have already across a barrier and you're already through with some, because be it the state service commissions or the Union Public Service Commission, New Delhi. I hope that will not mind if I also speak in Hindi or I speak in the mixed language.
so कहते हैं कि यूपीएससी और एचपीएससी की जब दहलीज आप के ऊपर खड़े होते हैं तो इट्स honor also. Not only your confidence level has to be great, and you should be quite confident of attempting all kind of questions which will be posed to you. So I'll try to give you the overview of Himachal Pradesh initiatives towards environment protection and environment management, so far the state journey, and also will give you few glimpses of the current affairs, what is going on currently in India and internationally, how the Indian stand is and our country stand is, and how Himachal Pradesh is participating in those commitments, and how we are looking forward to resolve the national commitments. So I'll be covering that aspect also. So as you all know that I'll be focusing on the environment protection only, and its management, the pollution control aspects. Maybe if you prefer, then I'll also speak about the climate change policy and action in the state and at the national level. Environment journey in India, it started over around since the 1960s. In fact, that the concern over the state of environment grown up during the 60s, in fact, and that was endorsed by the United Nations Conference on Human Environment held in Stockholm in June 1972. And those were the bases, when the world communities resolved to protect and enhance the environmental quality. And while participating in the said conference, Government of India strongly voiced the environmental concerns, and although several measures were taken before also, environment protection, not only for the environmental protection, but also for the pollution control in the country. And this conference, it was found necessary to enact a comprehensive law on the environment protection to implement the decisions of the conference. Accordingly, the Environment Protection Bill was produced in the Parliament, and it was passed, and then this act, the Environment Protection Act in 1986, was adopted and introduced in the country. And this is the umbrella act which provides the rules and the complete cover to the environment conservation in the country. Under the Environment Protection Act, there are various rules. In fact, when you have an act, for execution of that act, you need to notify various provisions under different sections, and then you execute that act. So that Environment Protection Act 1986, that was executed through rules also, and there were environment protection rules, and then various other rules on subject to subject basis were introduced in the country. So adopting those various rules under the Environment Protection Act, our state, when it came in existence in 1971, it was reorganized, and then you all know that what is the constitution of state and all. I'll not touch on that. So I'll be coming to the state, our journey in Himachal Pradesh started with a constitution of the Pollution Control Board in Himachal Pradesh. That was done initially in the year 1980s. It started around 1974 when the Water Act was promulgated in the country. So that is Water Conservation and Protection Act was introduced in the Parliament. So that act provided to constitute environment pollution control boards, the state pollution control boards across the country. And with those provisions, under Section 4, these state pollution control boards are constituted across the pan-India. In all the states, there are state pollution control boards, and those state pollution control boards are constituted under Section 4 of Environment Protection Act. And with that provision, in Himachal Pradesh also, we constituted a state pollution control board.
Himachal Pradesh State Pollution Control Board in 1974, and that journey started with this. Later on, with the merging issues and challenges of late, the state of Himachal Pradesh, uh, uh, you know, uh, constituted a Department of Environment, Science and Technology in 2007. And that was on behest of initiative by the World Bank. State government of Himachal Pradesh had engagement with World Bank on different policy reforms. So with that initiative, this Department of Environment, Science, Technology was uh, constituted by the cabinet of in Council of Ministers. It approved it in March 2007, and the formal notification for this department was issued on 13th April 2007. And since then, the formal Environment Protection Act implementation in the state was started. So with that, how we did, in fact, I am also the part of that World Bank initiative, and I have been the part involved and instrumental in creating this department and formalizing the various rules and regulations in the state to execute various provisions of different acts or rules in the state. So not only this, in 2007, before that, so as you know that in Himachal Pradesh, this question might, because I'll also touch upon one thing which is very important later on the forest part, but this question may be slightly, touching some of the students, like our Department of Environment was constituted in 2007, and we started, enacting various acts in like HP first non-biodegradable act was introduced in 1995. So this could be a very relevant question in the interview, that how can you, just link that if you say about 2007 this department was constituted, then how the journey, Department of Environment executing as an entity was constituted in 2007. That directorate, you call it directorate, a different separate department was. However, the enactment of acts and rule is done by the administrative department at the secretariat level, where the secretary level officer is always sitting. Since the constitution of department, they look after the subject always. So environment, forest and science technology subject has always been there, but it was not formally executed through a department. So Department of Environment came in existence in 2007. The process of conserving environment, protecting environment was definitely a part of execution of the administrative setup, and that was done at the secretariat level. There was no executing officers at the field level. So now we have formal department officers there in the field, and they execute the functions. However, in 1995, we banned, we enacted first act in the state for HP, which called HP Non-Biodegradable Garbage Control Act 1995. So that was the first act which we enacted in 1995 and started, implementing it for control of garbage pollution by way of banning, like plastic. We are the first state in the country to, introduce this act, and through this act, in fact, act doesn't provide to ban any, polythene carry bag or anything else. It is the notification under that particular act which, empowers us to ban the polythene carry bags. So in 1997, after 95, we enacted the act. In 1997, we banned first time the polythene, carry bags in this state, and we were the first in the Asian region to ban the use of recycled plastic carry bags. उसके बाद
This journey kept on, and in 1998 we banned a particular thickness size of plastic carry bags. Then in 2004, thereafter we kept on, just ensuring that this act will be further strengthened, and uh, field level actions we kept on doing. But in 2004, when we realized that this plastic menace is not under control and this is increasing and increasing, we banned the plastic carry bags. Recycled polythene carry bags are different. Plastic, the virgin plastic carry bags are different. So we all again banned, taking further action on this. In 2004, we banned the use of plastic carry bags in the state of a particular thickness. And then in 2009, again, we further strengthened it and we imposed the complete ban on the plastic use of plastic carry bags, thermal cut, with that, we kept on, banning other materials also. And till date, there are around, there is a complete ban on use of plastic carry bags. There is complete ban on use of thermocol cutlery. There is complete ban on use of plastic cutleries. That includes straws, spoons, etc. These are banned in this state. So now you'll ask that what you say about the plastic waste management handling rules, uh, which are issued by what is the difference between two, which have been issued by the Government of India in 2016 and which are issued by the state. The State Act is different, Union Act is different. So we, in fact, you also are aware of concurrent list and other state lists. So there is a difference between the two things. The State Act is different, that has to be implemented within the jurisdiction of the state. वो हिमाचल प्रदेश के अंदर ही इंप्लीमेंट किया जाता है, जो HP नॉन बायोडिग्रेडेबल एक्ट 1995 है, उसको स्टेट से बाहर इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। वो हमारी अपनी पावर्स में हमारी स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने अप्रूव किया है। लेकिन जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2006 में इंट्रोड्यूस किए थे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरी कंट्री के लिए अक्रॉस इंडिया जो है वो इंप्लीमेंट किए जाते हैं। उसमें डिफरेंट सेक्शंस में हमें सारी स्टेट्स को डिफरेंट डिफरेंट पावर्स हैं, और वो रूल जो है सेंट्रली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है नोटिफाई करता है, और हम लोग जो है स्टेट गवर्नमेंट उसको इंप्लीमेंट करती है। एंड देयर इज नो क्रॉस कटिंग, हमारे और उसके बीच में कोई आपस में, हमारी अपनी इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन है, अपने लॉज अपने प्रोविजंस हैं, उनके अपने लॉज और अपने प्रोविजंस हैं। यू कैन गो थ्रू इन डिटेल, बिकॉज इफ आई गो इनटू द minute things, so it will take much time. We have to cover a lot of things today, so I'll be just touching upon the subjects. You just touch these things, that there are plastic waste management handling rules independent 2016, and there is HP non-biodegradable act. You just see both the what are the provisions and how they are independent from each other. Third, which I want to touch, is this plastic waste management handling rules now have been completely introduced with the a notification has been issued under that from with effect from July 2022 there will be complete ban on single use plastic. Single use plastic के ऊपर पूरे इंडिया में 1 जुलाई से पूरा कंप्लीट बैन होगा 2022 से। एंड फॉर दैट, एग्जीक्यूटिंग दैट, to phase out the single-use plastic from each and every market, every shopkeeper, all the states through a national task force, जिसके जो सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट के, वो उसके चेयरमैन है, वो उसको पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं, और एक नेशनल टास्क फोर्स बनी हुई है, और उसके जो मेंबर हैं वो सारे चीफ सेक्रेटरी सब इंडिपेंडेंट स्टेट्स के हैं, वो सब उसके मेंबर्स हैं, और वो सब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए इस पर्टिकुलर प्रोविजन को, बिकॉज ये आपको पता होना चाहिए कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ये बड़ा कमिटमेंट है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को हमें बिल्कुल कंप्लीटली बैन करना है, और उसको बैन करने के लिए नोटिफिकेशन भी जारी हो गई है, और इसको स्टेट्स लेवल पे इंप्लीमेंट करने के लिए स्टेट लेवल की टास्क फोर्स बनाई गई है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द चीफ सेक्रेटरीज।
और वो चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो सबको इंडिकेटिव एक एक्शन प्लान जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है सिंगल यूज प्लास्टिक को फेज आउट करने के लिए, और उसमें हर पॉइंट पे कि किस तरह से उसको करना है उसके ऊपर कार्य किया जा रहा है। और आने वाले कुछ दिनों में स्टेट के अंदर भी उसके लिए एक बड़ी स्टेट लेवल की मीटिंग होने वाली है। सो ये तो प्लास्टिक की जर्नी हमारी स्टेट की रही है। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आप लोगों का होगा तो आई विल बी देयर टू रिप्लाई यू एंड यू कैन हैव सम क्वेरीज ऑन दिस आल्सो। नाउ अब इसके बाद जो हम बात करेंगे वो करेंगे कि हमारा स्टेट में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए व्हाट काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स वी हैव टेकन इन हिमाचल प्रदेश। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए स्टेट के अंदर हमने एक स्टेट एनवायरनमेंट मास्टर प्लान बनाया हुआ है। उस एनवायरनमेंट मास्टर प्लान में बिकॉज क्वेश्चन हमें इस तरह से भी आ सकता है कि हाउ वुड यू बी एबल टू इन केस जो आपका ये स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट इस वक्त चल रहा है कि देयर आर various issue on forest fire or like depleting of the forest cover, बिकॉज जब भी आपको ये इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाना है आपको एक नेगेटिव अप्रोच के साथ नहीं जाना है। दे मे पोज, आपको वो प्रॉब्लम देते हैं उसका हमें सोल्यूशन देकर बात करनी है, लेकिन हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर होना चाहिए कि नो, इन हिमाचल प्रदेश वी हैव एम्पल provision for the under the Environment Protection Act, under various statutes, under Forest Conservation Act, under Biodiversity Act, under various other provisions are there, and we need to really regulate it strongly, and we can achieve the and whatever the requirement of the society is or the administration is, so we can implement those acts and ensure the compliance to the standards and ensure the protection of the environment. So that should be the complete, kind of approach which you should be positive and be constructive on the various. You should be aware of what is the provision and how it can be implemented in the state. If there are non-compliances also, there is lack of compliance to the constitutional provisions also, but those cannot be the reasons for non-compliances, or sorry, for for the environmental degradation or for the failure of the system. So you have to be very clear that these provisions are to be strictly implemented and we can achieve the targets. So that should be the positive approach. You need to have the positive approach. We have ample enough provisions for environment protection, and we can conserve our environment. There is absolutely no problem. Now, so I was talking about the environment master plan. So environment master plan of the state was prepared in 2007, right? And that was adopted in year 2013. It took us around 5 years to prepare that environment master plan of the state. And beauty of this environment master plan is that it is prepared on the basis of vulnerability of environment on socio-economic and environmental vulnerability. That vulnerability assessment जो हमारी संवेदनशीलता है पूरे प्रदेश की, उसकी जो हमारी सामाजिक, पर्यावरण और जो हमारे प्राकृतिक जो सौंदर्य है उसकी सारे की कितनी संवेदनशीलता है स्टेट में, उस सारे को मद्देनजर रखते हुए उसके ऊपर किस तरह के डेवलपमेंटल हमारे प्रेशर्स हैं, उन सारों को अकाउंट फॉर करते हुए किस तरह से हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, किस तरह का इंडस्ट्रियल हमारे ऊपर पोल्यूशन का लोड है, ये सारे एस्पेक्ट्स को हमने कवर करते हुए उस एनवायरनमेंट मास्टर प्लान को बनाया है। और उस एनवायरनमेंट मास्टर प्लान में हमने सभी के सभी 36 डिपार्टमेंट्स को कवर किया है, और 36 डिपार्टमेंट्स को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। एक तो एनवायरमेंटल जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं वो हैं, दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं वो हैं, तीसरे जो सर्विस सेक्टर्स हैं उनको हमने लिया है। सर्विस सेक्टर में जैसे वाटर सप्लाई है, एनर्जी है, हेल्थ सर्विसेज हैं, ये सर्विस सेक्टर्स आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में वो डिपार्टमेंट आते हैं जैसे पीडब्ल्यूडी है, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर आईटी है, इंडस्ट्री है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होते हैं। तो इन सब के लिए हमने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को मद्देनजर रखते हुए
जितने भी हमारे एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए जरूरी जो कार्य किए जाने चाहिए, उनके लिए हर सेक्टर के लिए हमने सेक्टोरल गाइडलाइन जो है वो बनाई हुई है, और वो सेक्टोरल गाइडलाइन जो है वो स्टेट के अंदर अडॉप्टेड है। और आपकी नॉलेज में ये डालना बड़ा जरूरी है कि उन्हीं गाइडलाइंस के बेसिस पे हम अपना जो है ऑलराउंड जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इंश्योर कर सकते हैं, सतत विकास जो है हम स्टेट का इंश्योर कर सकते हैं अगर हम इन सेक्टोरल गाइडलाइंस को कंप्लाई करते हैं। सो देयर इज नो प्रॉब्लम, यू हैव मास्टर प्लान देयर इन प्लेस। सो नाउ वो ये कहेंगे कि आप इस एनवायरमेंट मास्टर प्लान को कैसे इंप्लीमेंट करोगे, that could be a relevant question. So you have to, then sensibly reply that this master environment plan has been prepared on the basis of tehsil level planning. So what we have to do, you all should know that the lowest unit of planning in our system is panchayat. So पंचायत के जो प्लान्स बनते हैं, जो तहसील लेवल से या ब्लॉक लेवल से डिप्टी कमिश्नर लेवल तक जाते हैं, उनको हमें उस एनवायरमेंट मास्टर प्लान के अकॉर्डिंगली अटेम्प्ट करना है। जब भी हम डेवलपमेंटल एस्पेक्ट की बात करेंगे तो एनवायरमेंट कंजर्वेशन के जो जितने भी पैरामीटर्स हमें डिफाइंड हैं, हमें वो उसमें इंपोज करने चाहिए। जैसे ही हम ये करेंगे, उससे हमारा एनवायरमेंट जो है वो अपने आप एक सस्टेनेबली डेवलपमेंट, हमारी स्टेट जो होगी वो एनवायरमेंटली फ्रेंडली स्टेट बनती जाएगी। सो दैट शुड बी द आंसर। अब एनवायरमेंट मास्टर प्लान के अलावा व्हाट वी हैव बीन डूइंग इज कि हमारे यहाँ पे जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए देयर इज स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और जितना भी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके अलावा हमारे पास वाटर एक्ट है 1974, एयर एक्ट है 1981, उसके अंडर रूल्स है। उसके अलावा जो हमारे जो ये हेल्थ इंस्टीट्यूशन से पोल्यूशन होता है, उसके लिए बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स हैं 1988 से शुरू 98 से शुरू हुए थे, लेकिन अभी अमेंडमेंट आके उनमें काफी ज्यादा चेंजेस आ गई हैं। उनको भी आप थोड़ा उसमें जरूर एक बार नजर उसमें घुमाएं। उसके अलावा हमारे पास हैजर्डस वेस्ट, जो इंडस्ट्री से जो हैजर्डस वेस्ट निकलता है, उसके लिए हमारे पास हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट इन हैंडलिंग रूल्स अलग से बने हुए हैं। उसके अलावा ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं, और भी बहुत सारे जो रूल्स हैं उसके एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के एक्ट के अंदर हैं, वो सारे के सारे स्टेट के अंदर अडॉप्टेड हैं, और हम उनको सबको इंप्लीमेंट कर रहे हैं थ्रू स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और हर जिले में, हर इंडस्ट्रियल एरिया में स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक रीजनल ऑफिसर जो है बैठा हुआ है, एनवायरमेंटल इंजीनियर, जो उसके लिए उनको इंप्लीमेंट करने के लिए उन पर्टिकुलर एरियाज में, अपने अपने एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन में उन एक्ट्स के प्रोविजन को इंप्लीमेंट करते हैं। जहां तक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स की बात है, इनको भी डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट के अलावा जितने भी विभाग हैं, चाहे वो फूड एंड सिविल सप्लाई है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, पुलिस है, आपके जो होम गार्ड्स है, आपके जितने भी ऑफिसर्स, लगभग उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, इन सबको जो है उसमें पावर्स डेलीगेटेड हैं चालान करने के लिए। और यू विल बी सरप्राइज कि आज तक हमारे यहाँ पे लगभग प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का जो चालान किए गए हैं, कम से कम 10,000 जो है वायलेशन जो है सिंस 2007 आज तक लगभग 10,000 चालान जो है वायलेशन किए हुए हैं, और उनमें करीब 1 करोड़ रुपए जो है फाइन हमने कलेक्ट करके एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर खर्च किया है। एनीवे, दिस इज वन स्टैटिस्टिक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो कंप्लायंस है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर इस पर्टिकुलर जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर है, वो बहुत स्ट्रिक्ट है, और बहुत स्ट्रांगली हम अपना एक, हमारा पूरी कंट्री के अंदर जितना भी आज की डेट में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर काम हो रहे पूरे विश्व भर में या पूरे हमारे नेशनल लेवल पे, वो हमारी स्टेट से ही सबने लर्न करके उसको इम्प्लीमेंट करना। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि which thing you really impress you on state's initiative for the environment protection, it is the plastic waste management, for which the state of Himachal Pradesh in 2011 was awarded national level prime minister's excellence award. ये हमारी स्टेट को प्राइम मिनिस्टर्स एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेलेंस अवार्ड जो है
प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए मिला था। सो ये क्वेश्चन भी एक आ सकता है, बिकॉज ये हमें अवार्ड मिला था वेस्ट कंसेप्ट टू पॉलिसी, कि हम एक वेस्ट प्लास्टिक की प्रॉब्लम को हमने किस तरह से पॉलिसी में ले जाके उसको खत्म करने की कोशिश करी। अब हमारे यहाँ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप इस प्लास्टिक वेस्ट को अगर, बिकॉज प्लास्टिक इज डे टू डे बेसिस हमारा एक पार्ट बन गया है पूरे प्रोसेस का, जो भी हम दिनचर्या हमारी है उसमें प्लास्टिक एक ऐसा इंटीग्रल पार्ट हो गया है कि इसको हम अपने से दूर नहीं रख सकते हैं। सो प्लास्टिक पोल्यूशन तो रहेगा। सो हाउ एंड व्हाट इज योर स्ट्रेटजी टू मिटिगेट दिस? सो प्लास्टिक वेस्ट को कलेक्ट करना, क्योंकि जो कूड़े में जो प्लास्टिक जाता है उसको हम अगर सेग्रीगेट नहीं करें, देन दिस पोल्यूशन प्रॉब्लम इज देयर। इन केस अगर जनरेशन के पॉइंट पे ही अगर हम प्लास्टिक को वेस्ट से, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हमारा और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम अलग अलग करके जो सेग्रीगेशन है उसका इंश्योर करें, तो ये प्रॉब्लम आधे से ज्यादा सॉल्व उसी पॉइंट पे हो जाती है। सो प्लास्टिक इज अ वैल्यू, इट हैज अ वैल्यू, इट हैज ए कैलोरीफिक वैल्यू, एंड इसको जलाने पर भी हमें एनर्जी प्राप्त होती है। आपको पता है कि प्लास्टिक जो है ये हाइड्रोकार्बन है, और इसको जलाने से एनर्जी हमारे कैलोरीफिक वैल्यू इसकी होती है, और हमें जो है इससे एनर्जी मिल सकती है। तो वेस्ट टू एनर्जी जैसे प्लांट है, आपका प्लास्टिक को टारकोल के अंदर डालकर आप सड़क में इसको यूज कर सकते हैं, उससे आपकी रिटेंशन बढ़ती है। हिमाचल प्रदेश के अंदर लगभग 175 किलोमीटर सड़कें जो है ऑन रिकॉर्ड रिपोर्टेड 175 किलोमीटर रोड जो हैं अभी तक स्टेट के अंदर प्लास्टिक से हमने बना के की, और चारों सर्कल में जो पीडब्ल्यूडी के हमारे सर्कल्स हैं वहां पे इन चारों सर्कल के थ्रू हमने इनको इम्प्लीमेंट किया है और कंस्ट्रक्ट किया है हिमाचल प्रदेश के अंदर। इसके अलावा बड़ा इंपॉर्टेंट, इन 2019 state of Himachal Pradesh introduced a buyback policy of waste plastic. So this policy has been adopted in the state in 2019, and इस वेस्ट प्लास्टिक पॉलिसी का, बायबैक पॉलिसी का प्रोविजन ये है कि हम हाउस होल्ड से लेकर रैग पिकर तक हम हर एक बंदे से, जो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हमारा है, जो हमारी म्यूनिसिपल कमेटीज हैं, नगर पंचायत हैं, जितने भी पंचायतें हैं, इनको ये प्रोविजन करके दिया गया है कि कोई भी इनके पास अगर वेस्ट प्लास्टिक एक पर्टिकुलर, जैसे सफाई और उसका साफ सुथरा प्लास्टिक वो होना चाहिए, रिसाइकलेबल मल्टी लेयर जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको 75 रुपए के हिसाब से खरीदा जाता है, 75 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदा जाता है स्टेट के अंदर। और इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया है। इस पॉलिसी के अंदर के अंतर्गत अभी तक हमने लगभग पूरे स्टेट के अंदर 1,10,000 किलो प्लास्टिक जो अभी तक खरीदा है, और लगभग हमने इसके लिए 1 करोड़ रुपए जो है अभी तक हमने रैग पिकर्स को और हाउस होल्ड लेवल पे जो है लोगों को रिम्बर्स किया है, उसकी कॉस्ट हमने उसकी दी हुई है। ये इस तरह से ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की जर्नी जो है वो स्टेट के अंदर है, एंड इट इज अ वेरी सक्सेसफुल मॉडल इन द कंट्री विच इज अडॉप्टेड बाय दी। और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स, हाँ, हम सारी जगह जो है छोटी छोटी लेवल पे जो हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम प्लास्टिक को जलाएं और उससे हम एनर्जी बनाएं, एनर्जी रिकवर करें और उससे बिजली बनाएं या उससे बैटरी चार्ज करने के लिए हम प्रोविजन करें। Now I'll come to the other part of like water pollution. तो वाटर पोल्यूशन के लिए मैंने आपको बताया कि जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं हमारे, वाटर पोल्यूशन दो तरह का होता है। एक तो होता है जो घरों से जो है वो वेस्ट वाटर निकलता है, एक जो हाउस होल्ड लेवल से निकलता है उसको आप डोमेस्टिक वेस्ट वाटर बोलते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ वेस्ट वाटर प्रॉब्लम इन द स्टेट, वन इज डोमेस्टिक, अदर इज इंडस्ट्रियल। एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जो है उसके लिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है, और इंडस्ट्रीज वेस्ट वाटर पोल्यूशन के लिए सभी इंडस्ट्रीज को टर्शरी ट्रीटमेंट लगाने के लिए वो बाध्य हैं। और उनको टर्शरी ट्रीटमेंट जो होता है, आप ये देख लें कि डिफरेंट ट्रीटमेंट स्टेजेस, इतने माइन्यूट वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन
फिर भी आप अपने उसमें ध्यान रखें कि टर्शरी ट्रीटमेंट क्या होती है, जिसमें पानी को हम रीयूजेबल बना सकते हैं, राइट। तो ये प्रोविजन जो है वो हमारे एनवायरमेंट इसमें वाटर पोल्यूशन जो वाटर एक्ट है हमारा उसके अंडर किए गए हैं, और वो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। और प्रदेश के अंदर एक जो सबसे बड़ा हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, वो जहाँ पे सबसे बड़ा हिमाचल प्रदेश का फार्मा हब, एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो फार्मास्यूटिकल का जो हब है, वो बद्दी एंड बरोटी वाला नालागढ़ एरिया इंडस्ट्रियल एरिया है हमारा, राइट। और इस एरिया में आपको पता होना चाहिए कि कोविड की अगर कहीं से दवाई अगर पूरे कंट्री के अंदर गई है और पूरे वर्ल्ड के अंदर गई है, तो वो बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ एरिया से गई है। यहाँ से हमारी क्लोरोक्विन जो बाकी की और अदर्स जो कोविड की जो दवाइयां हैं, आज वहाँ पे वैक्सीन वगैरह सारी बननी शुरू हो गई हैं बद्दी में। और बद्दी इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, इसके बारे में थोड़ा आप जरूर स्टडी करके जाएं। मैं वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड वहां पे बात कर रहा था, तो बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ एरिया में हर एक जो वाटर पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है हमारे वहां पे लगभग 30 MLD 30 मिलियन लीटर वाटर पर डे वेस्ट वाटर निकलता है इन इंडस्ट्रीज से। वहां पर लगभग बड़े जो लार्ज स्केल की 4000 के करीब इंडस्ट्रीज हैं, और अराउंड बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ एरिया में 30,000 से ज्यादा इंडस्ट्रीज, छोटी बड़ी जो हैं, लार्ज स्मॉल एंड अलग अलग जो स्टेजेस हैं, कैटेगरीज होती हैं, वो वहां पे कार्य कर रही हैं। और उनसे लगभग 30 MLD मिलियन लीटर वाटर जो है पर डे वेस्ट वाटर जनरेट होता है, जिसको ट्रीट करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और उस वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा एक कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जो है वहां पे स्थापित किया गया है। और हम जो है उस वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के बाद सिरसा नदी के अंदर भी फेंकते हैं, और वी आर ट्राइंग कि हम उसको वापस रिसाइकल करके इन इंडस्ट्रीज की जो वाटर रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए यूज करें। तो उसके ऊपर हम कार्यरत हैं। तो आपका ये बड़ा एक कंस्ट्रक्टिव रिप्लाई हो सकता है कि यस वी रियली नीड टू थिंक अबाउट कि इतना मिलियन लीटर वाटर एवरी डे हम एक्सट्रैक्ट करके उसको फेंक रहे हैं नाले के अंदर, तो अगर वो रिसाइकल किया जाएगा और उसकी तो वैल्यू उसको अटैच की जाए तो दैट विल बी वंडरफुल। सो ये वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड थी। इसके अलावा जो हमारे जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, वहां पे सारी इंडस्ट्रीज को एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो कंपलसरी है, और वो सारे बिना उसके उनको ऑपरेट करने की परमिशन नहीं दी जाती है। सो ये वेस्ट वाटर इंडस्ट्रियल की बात करी। सेकंड मैंने बताया आपको डोमेस्टिक वेस्ट वाटर। सो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर जैसे होता है, जो ग्रे वाटर होता है, वो एक हमारा आता है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है जो सीवरेज का है। और दूसरा जो वेस्ट वाटर है वो है किचन वेस्ट। जो किचन में रसोई घर में आप पानी यूज करते हैं, वो जो वेस्ट निकलता है या नहाने का जो पानी है, एक वो पानी है, एक वो है जो टॉयलेट से हमारा जो टॉयलेट शीट से हमारा जो वेस्ट वाटर सीधा सीवरेज ट्रीटमेंट में जाता है या सेप्टिक टैंक में जाता है। सो ये वेस्ट वाटर जो है पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी हमारी नगर पंचायत हैं या अर्बन लोकल बॉडीज हैं, यूएलबीज हैं, वहां पे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है कॉमन लगे हुए हैं। जैसे शिमला में भी लगे हुए हैं, अलग अलग पॉकेट्स में लगे हुए हैं। यस, वहां पे इश्यूज कनेक्टिविटी के जो चैलेंज है, वहां पे क्या चैलेंज है, अगर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं तो वहां पे कनेक्टिविटी के इश्यूज जो है आज की डेट में हमारे पास काफी ज्यादा है। और उनका अगर कनेक्शन नहीं होता है तो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का कोई यूज नहीं है। सो कनेक्टिविटी इज ए बिग इशू। अगर हम जो कनेक्टिविटी का नेटवर्क है उसको करेक्ट कर सकें, उसको अच्छे से ट्रीट अगर हम कर सकें, तो वाटर पोल्यूशन की प्रॉब्लम जो है काफी हद तक हमारी रिजॉल्व हो जाती है। और प्रदेश के अंदर डोमेस्टिक वेस्ट वाटर के लिए और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए एम्पल जो है प्रोविजन जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। जरूरत है हमें अच्छे से उनको इंप्लीमेंट करने की। नाउ एयर पोल्यूशन के लिए मैं आपकी बात करना चाह रहा हूँ। एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए प्रदेश के अंदर जो अडॉप्टेड है वो है एयर एक्ट एंड एयर रूल्स। तो एयर जो हमारा एक्ट है ये 1981 में अडॉप्ट प्रदेश के अंदर किया गया था। और हमारे यहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनका जो एयर पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए
इस एक्ट के अंडर जो है उनको कंसेंट दी जाती है, परमिशन दी जाती है और इंश्योर किया जाता है कि जो पोल्यूशन स्टैंडर्ड्स हैं वो बिल्कुल जो है वो जो कंप्लायंस जो है उनका वो एनवायरमेंट स्टैंडर्ड जो है वो पूरी तरह से हो और पोल्यूशन अंडर कंट्रोल रहे। हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है सीमेंट इंडस्ट्रीज की, जो एयर पोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करेंगे, हमारे यहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्रीज के जो बड़े बड़े प्लांट हैं वो है एसीसी बरमाना, दूसरा आपका बागा में आपका अल्ट्राटेक है, उसके बाद दाड़ला घाट में आपके पास 2 यूनिट जो है वो अ, इसके अंबुजा सीमेंट प्लांट के हैं। इसके अलावा पोंटा साहिब में एक राजबंद में हमारा छोटा सा प्लांट है सीमेंट का, सीसीआई उसको बोलते हैं। अ, उसके अलावा हमारी 2-3 प्रपोजल, एक चौपाल में और एक चंबा के लिए हमारी ऑलरेडी पाइपलाइन में है, जहाँ पे सीमेंट प्लांट हमारे आ सकते हैं। लेकिन मेजर जो ये 3 मैंने आपको बताए, अंबुजा, अल्ट्राटेक एंड जो ईसीसी है, ये बड़े बड़े प्लांट जो है प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं और इनसे बहुत ह्यूज मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ क्लिंकर एंड सीमेंट जो यहाँ से प्रोड्यूस होता है। और उसकी वजह से जितना भी हमारा ट्रकों का, ये हमारे रोजगार के साधन भी है। हम पोल्यूशन के नाम पे या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के नाम पे डेवलपमेंट को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। देयर आर एम्पल प्रोविजंस। पोल्यूशन को मैनेज करने का इशू हो सकता है, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे इस तरह के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को बैन करना इज नॉट ए सोल्यूशन। ये आपका एक अप्रोच रहना चाहिए व्हेन यू अपीयर बिफोर द इंटरव्यू बोर्ड। So we have provisions. We should implement strictly and comply and achieve the standards। जो हमारा compliance होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए और हमें डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स को, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड आपकी अप्रोच को ले सकता है कि आपका सीमेंट प्लांट के बारे में क्या ख्याल है, ये बहुत ज्यादा पोल्यूशन करते हैं, तो शुड वी बैन दिस कंस्ट्रक्शन और दिस डेवलपमेंट ऑन द सीमेंट प्लांट्स एक्सेट्रा साइड। So you should immediately react to that. No, 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 we should not. This is the important source of livelihood in the state. ये हमारे इकोनॉमिक जो जो बेस है पूरी स्टेट का, उसका बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस है। सो इंडस्ट्रीज को क्लोज करना जो है कतई हमारी फेवरेबल कंडीशंस में नहीं है। सो हमें एनवायरनमेंट के नाम पे ये बैन नहीं करने हैं, लेकिन हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो हमारा एक जो प्रोसेस है उसको अडॉप्ट करना है। ये आपका अप्रोच होना चाहिए। अब मैं आपके साथ जो बात करने वाला हूं वो करने वाला हूं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की। जो हमारी जो पूरा जो प्रदेश है, जो एनवायरमेंटली जो इकोलॉजी जो हमारे स्टेट की है, वी हैव 5 रिवर बेसिन्स। आपको पता होना चाहिए हमारे जो मेजर जो रिवर सिस्टम जो हमारा हिमाचल प्रदेश इकोलॉजिकली बहुत सेंसिटिव क्यों है, वो इसकी सुंदरता जो है इन नदियों की वजह से है। प्रदेश में 5 मेजर रिवर बेसिन्स हैं, जिसमें प्रमुख है सतलुज, दूसरा जो है हमारा ब्यास रिवर बेसिन है, तीसरा हमारा चिनाब रिवर बेसिन है, चौथा हमारा रावी बेसिन है और पांचवा रिवर बेसिन हमारा यमुना रिवर बेसिन है। इसमें से 2 रिवर बेसिन जो है हमारे, एक यमुना, नहीं सिर्फ यमुना ही, एक रिवर बेसिन जो है वो गंगा के जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसको गंगा बेसिन में हम करते हैं, और बाकी के जो 4 रिवर बेसिन हैं ये हमारे इंडस को कंट्रीब्यूट करते हैं। ये पानी हमारा इंडस बेसिन में जाता है। तो फॉर्मली हम 2 बेसिन्स को कंट्रीब्यूट करते हैं पानी प्रदेश से, इंडस और गंगा बेसिन को। तो गंगा बेसिन के लिए पानी कहां से जाएगा? जो हमारी यमुना है, जो हमारी साउथ ईस्ट रीजन का जो पानी है हमारा उस तरफ को जाता है, वो यमुना है। और अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि प्रदेश में जो बेसिन है, रिवर बेसिन है, कौन कौन से रिवर बेसिन जो है ओरिजिनेट प्रदेश से होते हैं और कौन बाहर से होते हैं। उसके लिए सतलुज, यमुना और ये जो है आपके जो है ये बाहर से आपके जो आउट ऑफ द स्टेट, यानी कि स्टेट बाउंड्री के बाहर से, सतलुज जो है वो चाइना और तिब्बत से आती है, 200-300 किलोमीटर का सफर करके वहां से ऑलरेडी वो उसके बाद हमारे स्टेट में एंटर करती है खाब के पास। खाब जो है ये खाब इज ए प्लेस नियर किन्नौर, लाहौल स्पीति और किन्नौर की बाउंड्री पे है। ये वहां पे हमारे को एंटर करता है, ज्वाइन करता है। और जो दूसरा जो
हमारा जो ये यमुना बेसिन है, इसका जो ओरिजिन है यमुना रिवर का, ये उत्तराखंड में है। यमुनोत्री जिसको आप बोलते हैं, वहां से स्टार्ट करता है, और इसका काफी जो ट्रेवल है फिर उस स्टेट के अंदर होता है हमारी, और उसके बाद फिर ये हरियाणा में एंटर कर जाती है यमुना नगर के पास। और इधर जो रावी बेसिन है, ये हमारा चंबा में से ओरिजिनेट होता है। ब्यास बेसिन हमारा ब्यास कुंड से होता है। चिनाब हमारा जो है ये ऊपर लाहौल स्पीति से होता है। तो ये 3 रिवर्स हमारी स्टेट से जो है वो फ्लो करती हैं। चिनाब बेसिन को बेसिकली ये चंद्रभागा बेसिन बोलेंगे हम इसको। चिनाब को हम कंट्रीब्यूट करते हैं, चिनाब फिर आगे इसकी बन जाती है चिनाब, पीछे ये चंद्रभागा ही है। और ये हमारे जो लाहौल है उस रीजन से हमारी शुरू होती है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि ये रिवर बेसिन जो है हमारी स्टेट की ब्यूटी तो है ही है। ये लगभग लगभग 400 मिलियन लोगों को, 40 करोड़ लोगों को ये रिवर्स रोजगार प्रोवाइड करती हैं। ये सिर्फ हमारी स्टेट के लिए पानी सप्लाई नहीं होता है, इससे हम लगभग जितने भी नॉर्दर्न इंडिया की स्टेट्स हैं, चाहे वो दिल्ली है, राजस्थान है, हरियाणा है, आपका पंजाब है, आपका अदर जो उत्तर प्रदेश, इन स्टेट्स को जो पानी है वो इन रिवर से जाता है। क्लीन वाटर सप्लाई हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत क्रिटिकल है इन रिवर बेसिन्स की वजह से। और इन रिवर बेसिन्स की वजह से ही जो हमारा जो स्टेट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ जाता है। इसके लिए नेशनल लेवल से लेके इंटरनेशनल लेवल तक हमारी इंपॉर्टेंस जो है वो उसका एक अपना पर्टिकुलर रोल है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन कंट्रीब्यूटिंग टू दी अदर स्टेट्स ऑल्सो। ये वेलफेयर जो हम यहाँ पे करते हैं, जो अपने यहाँ पे हम जो कर रहे हैं स्टेट के अंदर, ये सिर्फ हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उन 400 मिलियन लोगों के लिए, उन अदर स्टेट्स के लोगों के लिए भी हम एक उनके लिए एक क्लीन वाटर रिपोजिटरी का काम भी करते हैं। अब ये जो रिवर्स हैं हमारी, व्हाई दे आर क्रिटिकल एंड व्हाई आर वी वरीड ऑन डिफरेंट फेसेट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड अदर इश्यूज। इन रिवर्स के ऊपर आज की डेट में अगर सबसे बड़ा थ्रेट है तो वो थ्रेट है ग्लेशियर्स। जो ग्लेशियर्स हमारे हैं, आपको पता होना चाहिए, हमारे लगभग 37% एरिया में जो है हमारा जो एरिया है स्टेट का, वो ग्लेशियर्स के अंदर है, जहां पे परमानेंट स्नो कवर है। और ये स्नो कवर जो है हमारे जो जितने भी ये रिवर और जो ग्राउंड वाटर के जो रिसोर्सेज हैं, इनको रिचार्ज करने के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर क्लाइमेट चेंज अगर होता है तो इन ग्लेशियर्स के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। और ग्लेशियर्स के ऊपर अगर प्रभाव पड़ेगा, ये अगर मेल्ट होने शुरू होते हैं, तो ग्लेशियर लेक फॉर्मेशन होने का बहुत बड़ा खतरा जो है प्रदेश के अंदर हो सकता है। और जब ये ग्लेशियर लेक्स अगर बनती हैं, टेम्परेचर ऊपर जाता है, क्लाइमेट चेंज अगर चेंज होता है, तो ये ग्लेशियर लेक्स जब फटेंगी, आपको याद होना चाहिए कि पार्छू लेक एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रेजेडी जो है स्टेट के अंदर हुई थी। और वो पार्छू लेक जो है आज भी अभी तक वो लेक एग्जिस्ट करती है, वो भी एक ग्लेशियर लेक है। उसके अलावा प्रदेश के अंदर लगभग 692 ग्लेशियर लेक्स हैं, वो अभी तक फॉर्म्ड हैं डिफरेंट ग्लेशियर रीजन्स में, राइट। और वो ग्लेशियर लेक्स इतनी खतरनाक हैं कि अगर वो सीड करने, अगर वो फटने शुरू हुई, तो प्रदेश की जितने भी हमारे रिवर बेसिन्स के आसपास जो रिवर के साइड में जो डेवलपमेंटल जो जो गांव जो बसे हैं, जैसे कुल्लू है, कुल्लू के बाद मंडी है, मंडी के अलावा रामपुर है सतलुज बेसिन में, छोटे छोटे और टाउन जो हैं, इनके ऊपर बहुत बड़ा खतरा जो हमेशा मंडराता रहता है। और हमारे नुकसान हम लोगों ने विटनेस भी किए हैं, जब क्लाउड बर्स्ट और ऐसी छोटी छोटी जो एक्सीडेंट्स होते हैं, नेचुरल हजार्ड्स होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि पूरे प्रदेश, पूरे जो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हमारी स्टेट जो है 5वें नंबर पे रैंक होती है क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड नेचुरल हैजर्ड्स और नेचुरल क्लाइमेटी की वजह से। जो जिनका जो खतरा है वो उस पे वी रैंक 5 नंबर इंटरनेशनली। दिस इज रिकॉग्नाइज्ड नंबर, राइट। सो प्लीज रिमेंबर दिस, we are at number 5, we are ranked 5 from vulnerability point of view, from natural hazard point of view. So we have to be very prepared on that. Secondly, जो हमारी स्टेट है वो
जो अर्थक्वेक जोन जो है, प्रोन एरिया में जो हमारा जो जोन 4 और जोन 5 में जो है काफी एरिया हमारा फॉल करता है, उसकी वजह से भी हम बहुत सेंसिटिव हैं फ्रॉम क्लाइमेट हैजर्ड पॉइंट ऑफ। थर्ड, हमारे जो प्रदेश का जो लगभग 35 से ज्यादा परसेंट से एरिया जो है वो फॉरेस्ट के अंडर है, विच इज ग्रीन फॉरेस्ट कवर, एंड उसको कंजर्व करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आपको पता होना चाहिए जो चेयरमैन इस वक्त सर्विस मिशन के हैं वो फॉरेस्ट सर्विसेज से बिलोंग करते हैं। सो माय रिक्वेस्ट एंड माय एडवाइस टू यू वुड बी कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के ऊपर और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के साथ साथ वाइल्ड लाइफ एक्ट के ऊपर, क्योंकि वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के क्वेश्चंस, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के ऊपर क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंट आपके इंटरव्यू में हो सकते हैं एनवायरमेंट के साथ साथ। सो बी स्लाइटली प्रिपेयर ऑन दैट एस्पेक्ट। थर्ड, मैंने रिवर बेसिन्स की आपके साथ बात कर रहा था, इसके अलावा जो हमारे जो इम्पोर्टेंट जो वाटर सोर्सेज हैं वो हमारे वेटलैंड्स हैं। प्रदेश के अंदर 3 रैमसर साइट्स हैं, उसमें सबसे बड़ी जो है वो पोंग डैम है। जो रैमसर साइट्स आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड वेटलैंड्स होते हैं, और उनके लिए प्रोटेक्शन के लिए जो पैसा है या जो प्लान है या उसकी जो मॉनिटरिंग होती है, उसके एक्शन प्लान को जो प्रोटेक्शन उनकी जो होती है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेके इंटरनेशनल लेवल की जो हमारी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं उनमें उसका रिव्यू किया जाता है और प्रॉपर उसका जो कंजर्वेशन प्लान है वो एग्जीक्यूट किया जा सकता है। सो दिस कैन ऑल्सो बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वेटलैंड्स के ऊपर जो है वो चेयरमैन साहब आपके ये पूछ सकते हैं, और इसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा जो है प्रिपेयर, एक तो वेटलैंड्स का एरिया मैन मेड है, नेचुरल है, या ये किस तरह के वेटलैंड्स मतलब बेनिफिशियल हैं, वेटलैंड्स को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जा सकता है, किस तरह के प्लान्स होने चाहिए, उसके ऊपर क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सो प्लीज फ्लैग वेटलैंड कंजर्वेशन, जो हमारा एक पूरा का पूरा, आप हिमकॉस्ट करके हमारी एक एजेंसी है उसकी वेबसाइट है, हिमकॉस्ट करके आप टाइप कर लें गूगल के ऊपर, वो आपको मिल जाएगा। वहां पे आप वेटलैंड प्रोग्राम्स के ऊपर जाएं और उसके ऊपर आप पूरा डिटेल एक छोटा सा उसके ऊपर से नोट निकाल के अपने नोट्स बना लें। सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इसके अलावा मैं आपसे जो बात करना चाहूंगा वो बात करना चाहूंगा कि हमारे ये वेटलैंड्स या हमारे जो ये वाटर रिसोर्सेज हैं ये फिर फर्दर हमारे को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है हमारे लिए क्योंकि प्रदेश का जो इकोनॉमिक जो जो हमारी जो बैकबोन है वो हमारी हाइड्रो पावर पोटेंशियल भी है, और प्रदेश के अंदर जो है वो लगभग लगभग 24,000 मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का जो जनरेशन का जो पोटेंशियल है वो एग्जिस्ट करता है इन डिफरेंट रिवर बेसिन्स पे रन। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फिर इसके साथ साथ क्वेश्चन के आपको रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट चाहिए या डाइवर्जन वाले चाहिए। सो यू कैन वेरी इजीली से दैट एनवायरमेंट फ्रेंडली हमारे को रन ऑफ द रिवर ही प्रोजेक्ट जो है वो सूट करते हैं, और डाइवर्शन जो है वो कम से कम हमें प्रेफर की जानी चाहिए, क्योंकि डाइवर्शन करने के लिए हमें टनल्स बनानी पड़ती हैं, पानी को रोकना पड़ता है, उसके डाउन स्ट्रीम में इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। तो वो इम्पैक्ट्स को मिटिगेट करने के लिए हमें रन ऑफ द रिवर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ही हमें प्रेफर किए जाने चाहिए एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू या एनवायरमेंट मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अब वो ये कहेंगे कि नो 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 नो, आर यू स्टिल कन्विंस दैट रन ऑफ द रिवर ही हेल्प कर सकते हैं या डाइवर्जन वाले, क्योंकि देर आर प्रोविजन, सो कांट यू थ्रो सम लाइट ऑन दैट। सो यस, यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दैट। अभी तक हमारे जो जितने भी डाइवर्जन जहां जहां हमारे जैसे सतलुज का जो हमारा नाथपा जाखड़ी बड़ा प्रोजेक्ट है उसमें लगभग लगभग 45 मीटर्स किलोमीटर्स की जो है टनलिंग अंदर हुई है नीचे नीचे ग्राउंड के अंदर, और लगभग 20-22 किलोमीटर जो है वो रिवर जो है वो पूरी जो है वो सूख गई है और उसको डाइवर्ट कर दिया गया है। तो ये सारी चीजों को मिटिगेट करने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा ये इंश्योर किया गया था कि नीचे जो डाउन स्ट्रीम में उस डैम से जहां पानी रोक दिया गया बिजली पैदा करने के लिए उसको डाइवर्ट किया गया, उसके नीचे उनको डाउन स्ट्रीम में मिनिमम इकोलॉजिकल फ्लो, एनवायरमेंटल फ्लो जिसको कहते हैं, वो 15% जो है प्रदेश के अंदर अडॉप्ट किया गया है।
और वो इसलिए किया गया है ताकि डाउन स्ट्रीम के ऊपर जितनी भी जो हमारे जो वाटर के जो रिचार्ज के पोटेंशियल है या बायोडाइवर्सिटी जो है, चाहे वो फ्लोरा है चाहे वो फौना है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा जो है वो ई फ्लो का प्रोविजन जो है 15% का प्रदेश सरकार के द्वारा अडॉप्ट किया गया है। एंड यू शुड अप्रिशिएट दैट प्रदेश सरकार के द्वारा इसको ऑनलाइन से हर एक हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के डाउन स्ट्रीम में ऑनलाइन इक्विपमेंट जो मॉनिटरिंग के 24 घंटे जो है उसकी मॉनिटरिंग जो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा एंड वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है वो की जाती है। 24 घंटे निगरानी की जाती है। उसमें ये नहीं होता है कि वो पानी छोड़े या ना छोड़े, उसका कंप्लायंस इंश्योर किया जाता है। सो आपसे जो 15% है वो एस्पेक्ट आप टच कर सकते हैं फॉर मेंटेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जब हाइड्रो पावर पोटेंशियल की बात होती है उसको, उसके साथ अगर एनवायरनमेंट से रिलेटेड बात होती है तो 15% इज दी राइट। उसके अलावा जो हमारे विस्थापित हैं लोग, वहां से जो डैम्स जो R&R इश्यूज जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जब हाइड्रो पावर डेवलपमेंट की बात आती है। एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे एक तो कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन प्रोग्राम के बारे में बात होती है, जिसको आप जो जितना भी जंगल कटते हैं या समरजेंस जब डैम बनता है तो डैम के अंदर काफी ज्यादा जो एरिया जो है वो फॉरेस्ट एरिया जो हमारा उसमें चला जाता है, तो उसको किस तरह से हमें, या फॉरेस्ट कटता है अगर अगर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट जब भी जहां होती है तो उसके लिए कैसे किया जाता है, व्हाट इज द प्रोविजन। उसके लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर बाकायदा प्रोविजंस हैं कि एफोरेस्टेशन प्रोग्राम्स के लिए लोगों को कॉम्पनसेट करना पड़ता है। नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो फॉरेस्ट की जो ट्रीज कवर है उसकी जो जितने भी पौधे कटते हैं उसकी एक वैल्यू करने का, उसको इवेलुएट करने का एक प्रॉपर सिस्टम है, अकाउंटिंग होती है। और वो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है जो भी प्रोजेक्ट डेवलप होता है उसको वो पैसा जो है वो सरकार को जमा करना होता है और उसको एक अंडरटेकिंग और एक एक्शन प्लान बना के देना होता है कि जितना वो फॉरेस्ट काट रहा है उसके कॉम्पनसेशन में वो दूसरी जगह जाके जो उसको एरिया अलॉट होता है और वो वहां जाकर जो है उसको वहां पे या तो पैसे देने पड़ते हैं या तो फॉरेस्ट लगा के देना पड़ता है। दैट इज द प्रोविजन। और ये प्रोविजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो हमारे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट के अंदर इंप्लीमेंट किया जाता है। और ये पूरा जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है तो पूरे देश के अंदर जो है वो इसी तरह से लागू। और उसको कैंपा, एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की साइट पे जाके आप कैंपा के बारे में जरूर पढ़ें कि ये एफोरेस्टेशन जो कंपनसेशन जो है वो किस तरह से होता है। एफोरेस्टेशन प्रोग्राम को कैंपा उसको बोलते हैं, CAMPA। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल निकाल के उसको भी अपनी नजर में रखिए कि उसके बारे में आप कोई बात अगर आए बीच में कोई रेफरेंस तो उसके बारे में आप बात करने के लायक हो। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट जो हमारा जो प्रदेश के अंदर जो बहुत एनवायरमेंटल जो सेंसिटिव चीज है वो है बायोडाइवर्सिटी। प्रदेश की बायोडाइवर्सिटी, प्रदेश की बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए प्रदेश के अंदर एक स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड सेटअप है और वो डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट के अंदर जो है वो काम कर रहा है। ये बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है ये प्रदेश के अंदर जितने भी हमारी पंचायतें हैं 3000 से ज्यादा, उन सब पंचायतों में एक एक बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी जिसको BMC बोलते हैं ये बनी हुई है। और ये BMCs जो है रिस्पॉन्सिबल होती हैं जो पंचायत लेवल पे या विलेज लेवल पे जितना भी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए कार्य किया जाता है इन कमेटियों के थ्रू किया जाता है। और इन कमेटियों को प्रदेश सरकार के द्वारा 10-10 हजार रुपए जो है एनुअल ग्रांट जो है वो दी जाती है। सिमिलरली फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटीज जो हैं वो हर पंचायत में बनी हुई है। विलेज लेवल की फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटीज बनी हुई है प्रदेश के अंदर जो पूरा का पूरा नेटवर्क है वो पूरा का पूरा अच्छे से काम करता है। बायोडाइवर्सिटी में आपको पता होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी हमारी जो है ये बहुत ही प्रिस्टाइन है। हमारे जितने भी हमारे जो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे फॉरेस्ट है, चाहे वाइल्ड लाइफ है, चाहे फ्लोरा है, चाहे फौना है, ये पूरा का पूरा जो है इस बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंदर रेगुलेट किया जाता है। और इस एक्ट को इंडिपेंडेंटली नेशनल बायोडाइवर्सिटी जो हमारी अथॉरिटी है, NBA उसको बोलते हैं,
उसके अंतर्गत इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसके लिए जो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट जो बोर्ड है वो इस एनबीए, नेशनल बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो उसको कंट्रोल करती है और इसको इम्प्लीमेंट करती है। और इसके लिए प्रॉपर एक्शन प्लान बनते हैं। पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर जो बनाने हैं वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इस बायोडाइवर्सिटी बोर्ड की है। और हर गांव का, हर पंचायत का बायोडाइवर्सिटी किस तरह का है, इस पीबीआर इसको बोलते हैं, पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्स जो है वो प्रदेश के अंदर बने हुए हैं। ये आपको बायोडाइवर्सिटी जो बोर्ड है प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, उसकी वेबसाइट पे आपको ये पूरी डिटेल जो है यू कैन एक्सट्रैक्ट इट। जब आपको छोटे से नोट्स बनाने हो तो आप उसको क्लिक करें और वहां पे आपको पूरी डिटेल और जो जो कार्य वहां पे चल रहे हैं, जो जो प्रोजेक्ट्स वहां पे चल रहे हैं, उसके बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। प्रदेश के अंदर क्लाइमेट चेंज इज अ वेरी बिग इशू और इसके बारे में आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है जब भी मतलब कि हमारे स्टेट का क्लाइमेट के बारे में आपका क्या मतलब ख्याल है या कुछ भी रिस्पॉन्स आपसे मांगा जा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि जो क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान है ये नेशनल लेवल पे 2008 में प्राइम मिनिस्टर्स जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हमारी है उन्होंने ये जो है वहां पे 8 मिशंस के साथ जो था वो नेशनल क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान, NAPCC बोलते हैं इसको, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये 8 मिशंस के साथ जो है कंट्री के अंदर अडॉप्ट किया गया था। और उसी मिशन के साथ साथ जो हमारी UNDP जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके अंतर्गत प्रदेश जितने भी प्रदेश सरकारें हैं उनको जो है डायरेक्टिव्स जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर काउंसिल की तरफ से आए थे। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज बिजनेस को आजकल तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज बोलते हैं, ठीक है, पूरा नाम जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। सो क्लाइमेट चेंज एक मिनिस्ट्री पूरी तरह से फुल फ्लैश बन गया और इसको जो बेसिकली जो एक्शन प्लान को है इसको पूरी तरह से कोऑर्डिनेट करके किया जाता है। और सारी स्टेट्स को जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की तरफ से एक यूनिफॉर्म एक फ्रेमवर्क दिया गया था। और ये फ्रेमवर्क अडॉप्ट जो है वो 2010 में जो है पूरी प्रदेश सरकारों के द्वारा कर इसके अंतर्गत सभी स्टेट के अपने अपने स्टेट लेवल के क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान बनाए गए थे। हिमाचल प्रदेश में जो पहला एक्शन प्लान बना था वो 2012 में बना था। वी स्टार्टेड द प्रोसेस इन 2010 एंड वी प्रिपेयर्ड फर्स्ट स्टेट क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान इन ईयर अडॉप्टेड इन 2012। और 2012 में जो हमने स्टेट क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान बनाया है वो अभी हमने 2021 में रिवाइज कर दिया है। और उसका वर्जन 2 जो है उसको, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के 2012 के क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान में और आज की एक्शन प्लान में क्या चेंजेस है, तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि जो अभी का जो एक्शन प्लान, जो पहले वाला जो एक्शन प्लान था वो कंप्लीटली फोकस था हमारा अडेप्टेशन के ऊपर, कि हम जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके अनुकूल अपने आप को ढाल जाए। अभी जो हमारा एक्शन प्लान बना है वो हमारी जो नेशनल कमिटमेंट्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उनको कहते हैं नेशनल डिटरमिन कंट्रीब्यूशन, NDCs उसको बोलते हैं, हमारे टारगेट्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड NDCs। क्लाइमेट चेंज के साथ ये दो चीजें बहुत रेलेवेंट हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। वो कॉन्ट्रीब्यूशन जो NDCs जो हमारे हैं उसके साथ इन लाइन करते हुए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ और NDCs के साथ इन लाइन करते हुए हमने अपना दूसरा क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान बनाया है। और वो भी हमारा अडॉप्ट जो है वो प्रदेश के अंदर कर दिया गया है। इसका जो पूरा साइज है क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान का, ये लगभग 10,000 करोड़ रुपए का है, ठीक है। और वो भी जो ये एक्शन प्लान है आपका
पूरा हमारी वेबसाइट पे डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट साइंस टेक्नोलॉजी हिमाचल प्रदेश की वेबसाइट पे अवेलेबल है. यू कैन एक्सेस इट, आप उसको देख सकते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट जो कंट्री के अंदर अगर कोई बात हो सकती है तो वो ये है कि आपसे ये पूछते हैं कि व्हाट इज द नेशनल स्टेटमेंट बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इन 26. You should be able to reply that honorable prime minister in Glasgow, the COP 26, the conference of party 26, this conference of party is a very big meeting of all the parties means all the member nations, UNFCCC, जो हमारा ये एक क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन होता है पूरे वर्ल्ड का, जिसमें 197 से ज्यादा कंट्रीज मेंबर हैं. उन सारी कंट्रीज का ये कन्वेंशन होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को बोलते हैं. इसका 26th सेशन जो है हर साल होता है, ये किसी एक कंट्री में होता है, 12 कंट्री या अंडर 12 कंट्रीज में. तो इसका 26th जो सेशन हुआ ये ग्लासगो में हुआ था अभी रिसेंटली. पेरिस एग्रीमेंट वाज द 24th, ठीक है. उसके बाद पोलैंड में हुआ था, पोलैंड के बाद ये 26 जो है ग्लासगो में हुआ है. तो ग्लासगो में जो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ है, इसमें नरेंद्र मोदी जी की स्पीच जो हुई थी उसमें उन्होंने पंचामृत के बारे में डिस्कस किया था. व्हाट आर दी 5 नेक्टर एलिमेंट्स, पंचामृत के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं. आप उसके बारे में जरूर पढ़ें. स्पीच जो है वेबसाइट पे यूएनएफसीसी की अवेलेबल है. और इसको आप जब एक्सट्रैक्ट करेंगे वेबसाइट से तो वो ये आप लिखें उस पे कि नेशनल स्टेटमेंट बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एट COP 26 समिट इन ग्लासगो. तो इसके बारे में जब आप पढ़ोगे तो आपको इसमें नेशनल जो हमारी कमिटमेंट्स हैं वो इसके बारे में पूरी की पूरी जो है उन्होंने हर एक चीज को उसमें बड़े अच्छे से डिफाइन किया है. पूरी स्पीच उनकी उसमें है. और उन्होंने जितने भी 5 नेक्टर्स हैं जो है उनके बारे में उसमें चर्चा की है. और 5 नेक्टर्स में ज्यादा फोकस जो है एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर दिया गया है. अब आपसे वो जब पूछेंगे कि वो 5 नेक्टर्स का आप निचोड़ क्या निकालते हैं, तो वो 5 नेक्टर्स का निचोड़ ये है कि हमें एनर्जी कंजप्शन को कम करना है, अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है, और हमें बाय द एंड ऑफ सेंचुरी जो अपना 70% जो हमारा जो टारगेट है वो ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी से हमें मीट आउट करना है एनर्जी रिक्वायरमेंट. सो दैट इज द टारगेट. और मैक्सिमाइज करना है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और हाइड्रो पावर एनर्जी को अपने एनर्जी, क्योंकि आज की डेट में हमारा जो 80% शेयर जो है, 80% से ज्यादा जो शेयर है वो हमारा जो है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है, जो कोयले से, और कोयले से मैक्सिमम जो है हमारा 80% से ज्यादा जो पावर का जो शेयर है ग्रिड जो हमारे हैं वो वहां से आता है. हम हाइड्रो पावर का पोटेंशियल होने के बावजूद हम उसको पूरी तरह से हार्नेस नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें हमारे कई इश्यूज हैं. डेवलपमेंट के अलावा, रिहेबिलिटेशन के अलावा एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं. सिमिलरली जो हमारा ये सबसे बेस्ट जो होती है एनर्जी वो न्यूक्लियर एनर्जी हो सकती है, लेकिन हमारे पास उतना अभी इंफ्रास्ट्रक्चर और उतना भी रिसोर्सेज नहीं है कि भी हम उसको हार्नेस कर पाए. तो हमारे पास जो इजी जो वे है जिसको हम ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छे हम उसको हार्नेस कर सकते हैं, दैट इज द सोलर विच इज अवेलेबल वेरी इजीली विद अस. तो सोलर एनर्जी, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स, हमारी विंड पावर एनर्जी, इन चीजों को हमें हार्नेस करने के लिए मैक्सिमाइज करना है, और आने वाले टाइम में इसके ऊपर बहुत बड़ा फोकस होने वाला है. तो आप जब क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान की बात आएगी या जो 5 नेक्टर्स की बात आएगी, तो उसके लिए ग्लासगो में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो बात कही है, क्या फोकस उन्होंने दिया है, उसके बारे में आप जरूर एक नजर जो है उस पर्टिकुलर पेपर के ऊपर डालें और 5 नेक्टर्स की बात अवश्य करें, बिकॉज दैट विल गिव यू गुड मार्क्स. सो इसके अलावा जो हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है प्रदेश का आज की तारीख में, वो लगभग 1.45 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट है. ये कार्बन फुटप्रिंट प्रदेश में
हमारा जो एनर्जी कंजप्शन होता है, प्रत्येक जो जो व्यक्ति हमारा पर कैपिटा जो एनर्जी कंज्यूम करता है, उसके बेसिस पे हमने कैलकुलेट किया है। और इसके बारे में बकायदा डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट जो है ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो इन्वेंट्री बनाई है, उसके बेसिस पे आपका ये रिप्लाई बड़े इजीली हो सकता है उसके लिए। और ये दोनों जो रिपोर्ट्स हैं, एक कार्बन इंटेंसिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड एक ग्रीन हाउस गैस एमिशंस रिपोर्ट है, वेयर वी स्टैंड। ये दोनों रिपोर्ट्स जो हैं वो वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप उसको भी थोड़ा सा नजर में पढ़ लेंगे तो उसमें काफी ज्यादा नॉलेज जो है उसमें डाली गई है, तो यू कैन सी दैट। अब हिमाचल प्रदेश के अंदर जो रेगुलेशंस हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में आप जरूर पढ़ें। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है, उसकी बारे में पढ़ना इसलिए जरूरी है कि वो ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो मकसद है वो हिमाचल जैसी जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव स्टेट है और जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जितना भी लेजिस्लेटर है या जितना भी जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने जितनी पावर्स नहीं है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन देने की, जितनी पावर्स नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है उसके एक्ट के अंडर जो है इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और उसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में अवश्य पढ़ के आप जाएं, दैट विल बी वेरी रेलेवेंट फॉर यू। इसके अलावा आपके साथ ये भी बात हो सकती है कि प्रदेश के अंदर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम, नॉट ओनली इन द कंट्री, in the state of Himachal Pradesh, but across the country, which is a very important problem of the state as on date. And इसके बारे में आप क्या नजर रखते हैं, आप किस तरह से, आपका व्यू पॉइंट क्या है उसके बारे में, वेस्ट को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है इफेक्टिवली, जिससे हमारा वाटर सोर्सेज पोल्यूट ना हो, हमारे जंगल खराब ना हो, हमारी सॉइल क्वालिटी खराब ना हो, हमारी जो एक नेचुरल ब्यूटी है प्रदेश की वो खराब ना हो, उसके बारे में भी चर्चा हो सकती है। उसके लिए आपका जो रेलेवेंट जो एस्पेक्ट है वो ये होना चाहिए कि आप एज एन ब्यूरोक्रेट, एज एन प्रैक्टिशनर, अगर आपको मौका मिलेगा तो हाउ विल यू परफॉर्म इन दिस सेक्टर। आपका रेलेवेंट रिप्लाई जो मैं समझता हूं एज पर माय एक्सपीरियंस, you can always say that this is the sector which is always treated as a problematic sector and as a problem. But this sector is the one sector which has ample opportunities for employment and livelihood. It has to be honored. जितने भी हमारे रैग पिकर्स हैं उनको एक वाइट कॉलर, एक उनको ऑनर की नजर से जो है वो देखने की जरूरत है। और वेस्ट मैनेजमेंट में सबसे बड़ा जो इशू है वो वेस्ट कलेक्शन का है। Waste is not a problem. Waste is a resource, and we can use it. We can further recycle it. The only thing is what we are doing when we collect this waste or when we segregate, because the problem starts from, said in the beginning, that problem of any municipal solid waste start because of its mixing of different kind of waste. अगर आपकी मिक्सिंग ऑफ वेस्ट जो है ये स्टॉप हो जाए हाउस होल्ड लेवल पे, हमारा एक कैपेसिटी बिल्डिंग लोगों का जो अवेयरनेस है इतना ज्यादा इफेक्टिव हो कि लोग वेस्ट को अलग अलग करने उसकी जो है वो घर की लेवल पे अगर अपना कर दें तो हमारी ये 90% प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। लेकिन ये हो नहीं पाता है। अगर हम घरों में भी कचरा जो है, अब हमारी जो 90% जो यूएलबीज हैं, अर्बन लोकल बॉडीज हैं प्रदेश के अंदर, वहां पे हर घर में जो डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन, और डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन के अलावा प्रोविजन इतने अच्छे जो हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नेशनल लेवल से किए हैं। उन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर जो है स्वच्छता ही सेवा को जो उन्होंने प्राथमिकता दी है, बड़े बड़े प्रोग्राम उन्होंने चलाए हैं। उन्होंने ये कहा है कि स्वच्छता घर से शुरू होती है और उसकी हर एक चीज के लिए उन्होंने हर एस्पेक्ट के ऊपर उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। लेकिन होता क्या है कि हमने घर में कुछ लोगों को हमने खुद प्रैक्टिकली देखा है, कुछ लोग इतने अच्छे से घरों में अपनी लेवल पे जो है वेस्ट को सेग्रीगेट कर लेते हैं, कागज को अलग रखते हैं, प्लास्टिक को अलग रखते हैं, किचन वेस्ट को जो गीला वेस्ट होता है कचरा है उसको अलग रखते हैं। लेकिन जैसे ही रैग पेपर सुबह वेस्ट कलेक्ट करना है तो सारा का सारा वो इकट्ठा कर देता है एंड प्रॉब्लम स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। हमारे उन
रैग पिकर्स की उतनी नॉलेज लेवल उतना नहीं है, उनकी अवेयरनेस के ऊपर फोकस करने की बहुत जरूरी है। हमें ट्रेंड लोगों को इस सेक्टर में डिप्लॉय करने की जरूरत है। लोग इस सेक्टर में वेस्ट को हाथ लगाने में, उसको मैनेज करने में उसकी बदबू से डर जाते हैं। वो कहते हैं कि कचरे का काम मैं नहीं करूंगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है। वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर कैन बी ए गुड रिसोर्स ऑफ लाइवलीहुड। लोगों को अच्छी नौकरी इस सेक्टर में मिल सकती है फ्यूचर के अंदर। बिजनेस से लेके हर चीज के लिए, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज सेटअप करने के लिए इस सेक्टर से जो है अपॉर्चुनिटीज बहुत लोगों को मिल सकती हैं। तो आपको अपना जो रिप्लाई है वो इन्हीं बातों के आसपास रखना है कि दिस इज ए वेरी गुड, मतलब इट्स नॉट ए प्रॉब्लम, but we have to resolve this by providing opportunity to different aspirants with kind of livelihood opportunities, or some industrial options, and provide them some subsidies, or कि उनको encourage करना है हमने ज्यादा से ज्यादा वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर के साथ जुड़े। आज रेस शुरू हुई है, लेकिन it needs to be further supplemented by more efforts. So with this, I think I have tried to touch upon maximum topics which are possibly likely to be there before the when you face the interview, or when you come for the exams. Maybe I have left something, I may be missing something, um, but still you might have some questions. I have taken more than 1 hour. I think this is enough food for you for thinking and preparing. If you have any questions, so over to you, ma'am, and anybody can pose any question. I'll be happily replying that. Thank you. सर ने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे से, द वेज व्हेन यू हैव टच्ड ऑल द जर्नी, linking it with national and the state, and of course giving us all the current updates and statistics. But still, house is open for discussion. If you have any queries, participants, please, sir is available. आपको कुछ पूछना है, you can write your questions in the chat box. You can unmute yourself and ask directly. It's a very small group interaction. हेलो सर। हेलो सर, मेरा आपसे ये क्वेश्चन था सर, आपने जैसे बोला कि जैसे सर बद्दी नालागढ़ में इंडस्ट्रीज हैं, तो सर उसका जो आपने बोला कि वो सिरसा नदी में फेंकते हैं उसको, सर तो उससे पोल्यूशन नहीं होगा सर? तो मुझे ये बात थोड़ी समझ नहीं आई। जो मैंने आपको बताया कि बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ एरिया में जो हमारा वी हैव ए कॉमन एफुलेंट ट्रीटमेंट प्लांट, तो जो हम पानी, जो हमारा जो वेस्ट वाटर जो है, उस कॉमन एफुलेंट ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है, जिसमें टर्शरी स्टेज तक हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, उसको साफ करते हैं, और मछलियों के सर्वाइवल का उसमें चेक किया जाता है, बायो से टेस्ट किया जाता है, उसके बाद उसको सिरसा नदी में फेंका जाता है। सर एक हाँ, क्वेश्चन मेरा और था सर जी। वो मंडी में जब जाते हैं वहाँ पे सर बहुत ज्यादा टनल्स बन रही हैं, है ना, मैंने देखा वहां पर जाकर, तो सर वो इन्वायरमेंट के साथ थोड़ा सा वो है नहीं कि उसको खराब कर रहे हैं नेचर को सर, जैसे जाते उसमें से सर प्रॉब्लम नहीं आ सकती जैसे आगे जाकर थोड़ी सी? नहीं, certainly yes. I'll not disagree with you what your question is, but इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स है। अगर हम अपने यहाँ पे डेवलपमेंट का पॉइंट ये है कि जो नेशनल हाईवे जो मंडी का है, ये सिर्फ मंडी का या कुल्लू मनाली का नेशनल हाईवे नहीं है। You must appreciate that this is a very strategic road for the national security also. And this road is going to the border area, and we really need to have a strong, very effective road network towards our border areas. And apart from that, जो आपने जो क्वेश्चन पूछा उसमें एक जो हमारा जो टेक्निकल सर्वे होता है, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन जो है उसमें चेक की जाती है, और जितना इफेक्टिवली हम टनल बोरिंग्स जो है, आप वही कुल्लू मनाली हाईवे की बात कर रहे हैं ना? यस सर। हाँ,
आपने देखा होगा कि जितनी भी जो टनल जो है वो अगर पंडोह डैम से आगे तक औट तक जो बन रही है, जितनी भी जो वो एरिया है वहां पे हार्डली देर इज एनी परमानेंट स्नो कवर। वन सेकंड, जब अंदर से आपकी एक बार टनल बोरिंग वगैरह आपकी हो जाती है, बिकॉज टीबीएम टनल बोरिंग मशीन्स यूज की जाती हैं, ब्लास्टिंग बहुत कम की जाती है। ये एक फिनोमिना जो है जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस चेक करने के बाद उसमें टनल बोरिंग्स होती हैं। घुमा घुमा के उसमें से मिट्टी निकाल दी जाती है, ब्लास्टिंग नहीं होती है, तो हमारी जो जमीन है वो नहीं हिलती है, रॉक्स जो है हमारी फ्रैक्चर नहीं होती है। अगर कहीं अगर हमें पानी के या किसी रिसोर्स की प्रॉब्लम आती है तो हम थोड़ा बहुत ब्लास्टिंग करते हैं, जो उसको भी कंट्रोल्ड कंडीशन में किया जाता है। और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं अगर बहुत ज्यादा ब्लास्टिंग अनकंट्रोल्ड की जाए। उससे क्या होता है कि हमारी रॉक्स फ्रैक्चर हो जाती हैं, और जो वाटर कैपिलरीज हैं वो फ्रैक्चर जब हो जाएंगी तो वाटर जितना भी ग्राउंड वाटर सोर्सेज हैं हमारे ड्राई अप होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, बिकॉज एक जो डेवलपमेंटल जो आपका जो कंस्ट्रक्शन फेज होता है वो हमें ये सब चीजें बियर करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आप एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करते हुए इन चीजों को करें तो आपको कोई ऐसा कोई लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल इम्पैक्ट नहीं आएगा। नाउ जो टनल के साथ साथ अगर आप रोड को एक्सपेंड करते, अगर आपने देखा होगा कि अगर आप रोड की कटिंग करते तो आपकी इतनी ज्यादा कटिंग हो जाती कि आपके वो रोड्स कभी भी स्टेबल नहीं रहते। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि भी फ्यूचर में एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी बनती रहे, कोई लैंडस्लाइड्स ज्यादा ना हो, फॉरेस्ट ना कटे, ज्यादा से ज्यादा वहां पे हमारे जो मक और डेबरीज का इशू जो हमारा जो बनना था उस सब को कम करने के लिए ये टनल्स का एक ऑप्शन निकाला गया। इससे एक तो जर्नी टाइम आपका सेव होगा, एनर्जी कंजप्शन कम होगा, तो आपकी बाकी चीजें इसको ऑफसेट कर जाती हैं अगर आप टनल बोरिंग की बात करें। सो आई थिंक टनल वाला जो है वो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स तीन चार चीजों के साथ जुड़ा है। तो वो जब आपके साथ अगर आपका ये क्वेश्चन अगर फ्यूचर में कभी आपको इंटरव्यू में आता है, इस तरह से कोई बात होती है, तो यू कैन अप्रिशिएट that this is one good option, and this road is very important and strategically important for us from national security point of view, and we can compromise that much environmental pollution if it is needed. Okay, thank you so much. Kamini, you have raised your hand. Your question, please. Yes, ma'am. Good evening, sir. सर मेरा क्वेश्चन ना किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी उधर की, तो उसमें जो नाथपा जाखड़ी आपने बोला ना जो प्रोजेक्ट था सतलुज से रिलेटेड, उसमें वो अंडर टनल हुई ना ग्राउंड में नीचे से, तो उससे काफी लोकल लोगों मतलब जो भी लोकल लोग थे उनके घर वगैरह टूटे, तो उनको कोई कंपनसेशन नहीं मिली। तो वो बोल रहे थे कि और उसके बावजूद भी मतलब उधर काफी प्रोटेस्ट हुए थे, फिर भी वो जहाँ वहां पे जो प्रोजेक्ट्स है वो फिर भी मतलब बंद नहीं हुए तब अभी भी। अभी करंटली का नहीं मुझे पता, मतलब वो नाथपा जाखड़ी प्रोजेक्ट जो है प्रदेश का बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत हमारा जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो 1985 में बनना ये शुरू हुआ था। और मैं इसकी आपको जो आपके क्वेश्चंस और जो इश्यूज हैं वो बड़े बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसमें बहुत एजिटेशंस भी हुए थे और लगभग 45 किलोमीटर के करीब टनलिंग जो है इसमें हुई है। और उस वक्त के जो इम्पैक्ट हैं वो जो है वो उनको रिलेट किया जाता है क्लाइमेट चेंज के साथ। मैं तो आपको ये बताना चाहूंगा उसमें कि अगर आपसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आता है कि जो एजिटेशंस हुए थे, उन एजिटेशंस को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पूरी तरह से एंडोर्स किया गया था और उनको उनको जो सोल्यूशंस हैं वो पूरे प्रोवाइड किए गए, उनकी पूरी बात उन लोगों की सुनी गई थी। और उन्हीं बातों को सुनकर लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड जो है प्रदेश के अंदर जो है वो सेट किया गया था, क्रिएट किया गया था। और वो जो भी प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज थी उनको ये पैसा जो है, जो लगभग 1% जो है, लाडा इसको बोलते हैं, लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, हर प्रोजेक्ट से उसकी इनकम का 1% जो है वो लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड में कंट्रीब्यूट किया जाता है थ्रू डिप्टी कमिश्नर। उसके लिए प्रॉपर मैकेनिज्म जो है सरकार के द्वारा बनाया गया है। और इन लोगों के जो लोकल इश्यूज हैं जिसमें ब्लास्टिंग से उनके लोगों के जो घरों में दरारें आई, वो एक एस्पेक्ट ये एस्पेक्ट है कि उस वक्त हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी।
लेकिन आज की डेट में वो टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग हो गई है। उस वक्त 1985 में, आज से लगभग यू कैन सी 35 इयर्स अगो, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांसमेंट नहीं थी, तो उन लोगों के इश्यूज उस वक्त बने। लेकिन अब उसमें क्या हो रहा है कि जितने भी जो वो फ्रैक्चर्स उस वक्त जो ब्लास्टिंग की वजह से, अनकंट्रोल्ड ब्लास्टिंग की वजह से उस वक्त हुए थे, दरारें जो लोगों की आई या रॉक्स में जो दरारें आई, अब वो क्या होता है कि एक फिनोमेना होता है कि रॉक के अंदर अगर मॉइस्चर रहेगा तो वो जुड़ी रहेगी, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, रॉक के अंदर से मॉइस्चर निकलेगा तो वो ब्रेक, फ्रैगमेंट हो जाएगी, टूट जाएगी। और वही किन्नौर में हो रहा है। हल्का सा जैसे भी टेम्परेचर बढ़ता है और जैसे ही ये मॉइस्चर कम होता है क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो वो रॉक्स जो है वो गिरने शुरू हो जाती हैं और उसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। वी डू एक्नॉलेज दैट एंड वी आर ट्राइंग, स्टेट गवर्नमेंट इज क्वाइट एक्टिव ऑन दैट। हम सॉइल टेस्टिंग से लेके उन लोगों को उनके जो कॉम्पनसेशन ड्यू, जो उनकी जो एजिटेशन थे, उनको सबको एड्रेस किया गया है। उन्हीं की वजह से ये 15% का ऑनलाइन मॉनिटरिंग जो है वो जो प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया, लाडा प्रोजेक्ट इफेक्टेड फैमिलीज को, उनको सोशली उनकी सिक्योरिटी इंश्योर की गई थी सरकार के द्वारा, एंड उसके ऊपर बड़े एडवांसमेंट वे से जो उसमें कार्य किया जा रहा है प्रदेश सरकार के द्वारा। सो इट इज एक्नॉलेज दैट देयर वर इश्यूज because of the technical know-how and less advancement in that time, but now these issues are hardly there in the state. आपने देखा होगा कि हाइड्रो पावर सेक्टर में बहुत कम एजिटेशंस होते हैं, बिकॉज वी हैव a very effective hydro power development policy in the state, which addresses not only social concerns but also the environmental concerns. और सर आपको मतलब जो मंडी डिस्ट्रिक्ट मंडी है, मेन एरिया पूरा सिटी, और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है, ब्यास रिवर के पास है, तो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर जिस हिसाब से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो वहां पे लोग मतलब रिवर के साथ ही बहुत ज्यादा घर है, पूरी मंडी डिस्ट्रिक्ट है, तो कहीं ना कहीं मतलब उनको वहां से डिस्प्लेस नहीं करना चाहिए टाइम रहते? ऐसा ना हो एक टाइम आए कि मतलब आने वाले कुछ सालों में वो मतलब बहुत ज्यादा लोगों की जान जाएगी, और जो भी सब कुछ बहुत काफी डिस्ट्रक्शंस हो जाएंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन यस, जो रिवर साइड डेवलपमेंट है वो डिस्करेज की जानी चाहिए। तो जो हमारे जो प्लानिंग प्रिंसिपल्स हैं, जो पॉलिसीज हैं, हमारे जो 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 हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो प्लानिंग ऑफिसर्स होते हैं, वो रिवर साइड डेवलपमेंट को डिस्करेज करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि भी जितना भी वाटर फ्लो है अभी तक, तो मतलब इस तरह का कोई बड़ा एक्सीडेंट आने का भी तो कोई चांस नहीं है, बिकॉज हमारे जो डैम्स हैं वो जगह जगह डैम्स बने हुए हैं, और बकायदा उन पे जो है अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है, हमारे जितना भी डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हमारी काम कर रही है पूरे प्रदेश के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिसास्टर मैनेजमेंट जो हमारी रिस्पांस टीम्स हैं वो वहाँ पे एक्टिव हैं। और इस तरह के जब कभी एक्सीडेंट, अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है, देखिए एक बड़ा जो एक्सीडेंट होता है वो समटाइम्स इट इज नॉट इन द कंट्रोल ऑफ एनीबॉडी, बट यस, जितना रिक्वायरमेंट होता है, जितना विजुलाइज कर सकते हैं, फोरसी कर सकते हैं कि ये हो सकता है, वी ट्राई टू मिटिगेट दैट, एंड स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उसमें पूरे एफर्ट्स किए जाते हैं। और आपकी अप्रोच भी यही होनी चाहिए कि जितने भी पॉलिसीज जो इश्यूज हैं, जो आपने पूछा ये नेचुरल क्लेमिटीज की वजह से जो हमारे थ्रेट एक जो रिवर साइड डेवलपमेंट के ऊपर है, उसको मिटिगेट करने के लिए डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज जो है, वो जो एनडीआरएफ है, नेशनल डिसास्टर रिस्पांस टीम्स जो है वो बनी हुई है, फोर्सेस जो है, उसकी एक बटालियन मंडी के अंदर सेट की गई है नेर चौक के पास। अभी जो है वो रिसेंटली अभी उसका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है और अप्रूव हुई है वो बटालियन, और वो मंडी में उसका नेर चौक में उसका सेंटर बन रहा है। तो उसमें लगभग 3000 फौजी जो है उसमें रखे जाएंगे। तो इस तरह के अरेंजमेंट जो है प्रदेश सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। Sir, one last question. Kamini, I'm sorry I'm interrupting you. ऐसा करते हैं ना, let's give chance to other aspirants also, है ना? So Then you keep your question ready, we'll ask you also. We'll come back to you part में. Omshika, you have raised your hand. Yes, ma'am. Good evening, sir. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है बहुत ज़्यादा क्लाउड बर्स्ट होते हैं, तो हमारी गवर्नमेंट उसके मिटिगेशन के लिए क्या कर रही है?
Yes, very important question. So कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट एक स्टडी जो है प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है, और उसके जो मिटिगेशन प्लान है क्लाइमेट रिस्क के, वो पंचायत लेवल पे बने हुए हैं. सो गवर्नमेंट इज वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम. एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम एक वहां पे कुल्लू में देर आर 3 वैलीज. एक तो ब्यासा है जो ऊपर से आ रही है, जो ब्यास कुंड से चल रही है. दूसरा आपका जो इम्पोर्टेंट वैली है वो है पार्वती वैली. सबसे ज्यादा जो क्लाउड बर्स्ट अगर कुल्लू वैली में अगर कहीं होते हैं तो वो पार्वती वैली के ऊपर होते हैं. पार्वती वैली के ऊपर जो है प्रदेश सरकार के द्वारा पूरा जीआईएस मैपिंग किया गया है. उसका असेसमेंट स्विट्जरलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा के साथ मिलकर हमने उसके ऊपर कार्य किया है, और यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा के साथ मिलकर हमने अर्ली वार्निंग एक जो पूरा जो सिस्टम है उसका एक पूरा प्लान तैयार किया हुआ है. उसकी फंडिंग होकर अब हम उसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं. हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वहां पे बनी हुई है, और जितना भी हमारा जो ये ग्लेशियर जो लेक्स जो ऊपर बनी हुई है, हमारी उनकी मॉनिटरिंग के लिए पूरा जो है पूरा मैकेनिज्म जो है 24 घंटे जो है उसको मॉनिटर करने का सिस्टम इन प्लेस है. थैंक यू सर. वन मोर क्वेश्चन. आपने कहा कि जो है हम 15% डाउनस्ट्रीम के लिए जो है हमने फ्लो रखा हुआ है, तो 15% ही क्यों क्राइटेरिया रखा गया है? व्हाई नॉट मोर देन दैट? यस, सो 15% के पीछे साइंटिफिक बेसिस थे. जो एक असेसमेंट मिनिमम रिक्वायरमेंट जो डाउनस्ट्रीम में जितने फ्लोरा फोना है या बायोडाइवर्सिटी है, या जितने लोग हैं जिनकी क्या रिक्वायरमेंट है वाटर की, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ पर डे फ्लो, उसको असेस करके वो 15% को असेट किया गया. लेकिन इसके पीछे कोई बड़ा साइंटिफिक एनालिसिस नहीं हुआ है. लेकिन जब हुआ था, जितना जब कमेटी ने जो रिकमेंड किया था, तो वो जो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम जो सस्टेन करने के लिए, जो इकोलॉजी को सस्टेन करने के लिए रिक्वायरमेंट है पानी की, उसके बेसिस पे 15% किया गया. ओके सर, थैंक यू. वन मोर क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द लैंडस्लाइड्स इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट. अभी रिसेंटली पिछले साल जो है बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड किन्नौर में हुई, और काफी सारे लोग मरे भी हैं, 26 पीपल आई थिंक. तो हम कैसे उस चीज को मिटिगेट कर सकते हैं वहाँ पे? यस, लैंडस्लाइड मिटिगेशन का जो हमारा जो बेसिकली, तो हम जो नेचुरल कैमिलिटीज जो बेसिकली जो एक्सीडेंट की वजह से जो हमारी जो डेथ्स और जो बाकी जो ह्यूमन लॉस और इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस को तो हम नहीं रोक पाएंगे अगर लैंडस्लाइड अगर होता है. लेकिन वी कैन मिनिमाइज द ह्यूमन लॉस और जो हमारे जो लोगों की जीवन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लोग हमारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए हम वहां पे कार्य कर सकते हैं. उसके लिए आईआईटी मंडी के साथ मिलकर हम लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम जो है, अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है, वो डिप्लॉय कर रहे हैं. और इसके ऊपर जो है बड़े एडवांस तरीके से काम किया जा रहा है. और हमारी एक जो टीम है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की और आईआईटी मंडी की प्रदेश सरकार के द्वारा वहां पे डिप्लॉय की गई है. और इस पूरी उसकी सॉइल फॉर्मेशन को कि क्या प्रॉब्लम है उसको असेस किया जा रहा है कि ये क्यों बार बार वहां पे लैंडस्लाइड हो रहा है. मंडी के पास भी दरंग में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 2 बसेस जो थी वो बरी हो गई थी. काफी लोग उसमें 30-40 लोग उसमें भी मरे थे. तो वहां पे भी ये अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है लैंडस्लाइड का जो है वहां पे लगा हुआ है, और उसमें अलार्म बजता है. जब भी स्लाइड आने का या कोई पत्थर भी गिरता है तब भी वहां पे अलार्म बज जाता है. तो वो अर्ली वार्निंग का अभी तक हमने मिटिगेशन का एक बनाया हुआ है उसमें, ताकि कम से कम लोगों की जान जो है उसमें जाए या हम लोगों को बचा पाए. ये तो अभी तक हुआ है. और उसके अलावा उस सॉइल में किस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है उसको असेस करके वो प्लेस टू प्लेस ये चीज वेरी करती है. किस तरह की रॉक फॉर्मेशन है, उसको किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, क्या उसमें जाली लग के उसमें बच जाएगा, या उसमें कोई हमें जो सॉइल है उसकी ट्रीटमेंट, जैसे हमें कोई किसी तरह की झाड़ियां उसमें लगाकर उस मिट्टी को रोकने की, इस तरह की जो ट्रीटमेंट है वो वहां पे की जाती है और वो रिकमेंड की जाती है बेस्ड ऑन साइंटिफिक एनालिसिस. थैंक यू सो Sir, we are taking so much of time. But No. I'm really happy to reply because they need some replies also. At least their query should be addressed. So Rajat, Absolutely. you have raised your hand. Please ask your question.
Yes, ma'am. Very good evening, sir. Sir, my question is related to tourism sector. So basically हिमाचल का टूरिज्म काफी ग्रो कर रहा है, हमने रिसेंट ईयर्स में काफी अच्छी ग्रोथ देखी है। साथ ही साथ इसके साथ प्रॉब्लम बड़ी ये आ रही है कि प्लास्टिक वेस्ट अगर मैं स्पेसिफिकली मेंशन करूं तो वो काफी ज्यादा हमारे लिए इशू बन के आ रहा है ना। तो जहां जहां पर सर हिमाचल में कनेक्टिविटी अच्छी है तो वहां पर तो वेस्ट अच्छे से कलेक्ट हो पा रहा है, लेकिन हिमाचल में सर एडवेंचर टूरिज्म एक काफी अनटच्ड एरिया है। यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे मेंशन करूँ कि वहां पे कनेक्टिविटी अगर रहती है तो साल के कुछ महीने में रहती है, तो वहां पे जो वेस्ट होता है सर, तो वेस्ट वो वाला जो है अच्छे से कनेक्ट हो नहीं पा रहा है। तो उसके लिए अगर कोई प्रोविजन हमारी गवर्नमेंट ने बनाया है, स्टेट गवर्नमेंट ने, तो वो आप क्लैरिफाई करें, अगर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं सर इसमें बेटर, वो आप मुझे बताएं प्लीज। लुक, टूरिज्म सेक्टर का ये जो इशू आपने रेज किया ये बिल्कुल हमारे उसमें है, और हम इसमें एक हीलिंग हिमालय करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ। आपने प्रदीप प्रदीप सांगवान का नाम सुना होगा। ये प्रदीप सांगवान वो व्यक्ति है जिसने लगभग 5 लाख किलोग्राम ये मल्टी लेयर जो चिप्स और कुरकुरे के जो वेस्ट प्लास्टिक है उसको इकट्ठा करने के लिए बहुत एग्रेसिवली पूरे प्रदेश के अंदर हर टूरिज्म का जहाँ नॉन एक्सेसिबल एरियाज है, नॉन कनेक्टेड जो टूरिज्म के जो पोटेंशियल एरियाज है, खीर गंगा है, आपके जो हाई एरिया जितने भी हैं, चाहे वो आपका जोड़धार है, कोई भी एरियाज है धौलाधार के पास, बिल्कुल सब जगह ये जाकर उस वेस्ट को मनी महेश वगैरह से सारा ये वेस्ट लगा के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर ये काम करते हैं, हीलिंग हिमालय के स्टूडेंट्स। और ये जो वॉलंटियर्स हैं वहाँ पे, ये थोड़े बहुत नहीं है, पूरे प्रदेश में इनका नेटवर्क है जो हम डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट के साथ मिलकर वो काम कर रहे हैं। और हमने अभी तक थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ प्लास्टिक जो है वो इन टूरिस्ट जो जो सेंसिटिव एरियाज हैं वहां से ये कलेक्ट किया है। जो हीलिंग हिमालय जो बेसिकली अब क्या कर रहा है कि हम डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट के साथ मिलकर इन एरियाज में, जैसे खीर गंगा में है, तो खीर गंगा में जो पार्वती वैली में है, ये बहुत बड़ा एक पोटेंशियल एरिया है जहाँ पे लगभग 4 से 5 लाख टूरिस्ट जो है एवरी ईयर जो जाता है उसमें ट्रैकिंग के लिए, और वो जाके किन्नौर में निकलते हैं, तो पूरा का पूरा ट्रैक हम ये साफ कराते हैं। और इसमें अब हमने जो बाय बैक पॉलिसी मैंने आपको बताया था, प्रदेश में जो सिंगल यूज प्लास्टिक की जो हमने बाय बैक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी है 75 रुपए किलो के हिसाब से, वो हम इन वॉलंटियर्स को भी कंट्रीब्यूट करते हैं। और हर पंचायत में हमने कोशिश ये करी है कि जो इन ट्रैक्स के ऊपर पंचायत से, उन पंचायत के थ्रू जो है इस हीलिंग हिमालय के जो वॉलंटियर्स हैं उनको रिकवरी जो है कॉस्ट इसमें दी जाए। सो स्टेट गवर्नमेंट, आई मीन टू से, इज वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम एंड वी आर इफेक्टिवली डीलिंग विद। और बहुत सारा वेस्ट मैं आपके साथ मतलब वीडियो भी शेयर कर सकता हूँ कि किस तरह से खच्चरों पे भी हम वेस्ट जो है अपने हेड लोड पे जो है वेस्ट जो है वो नीचे रोड तक लाते हैं और उसके बाद उसको आगे ट्रीटमेंट और डिस्पोजल के लिए भेजते हैं। राइट सर, थैंक यू सर। रवि, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। रवि, यदि आप सुन पा रहे हैं हमें, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। गुड इवनिंग सर, आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन सर। जैसे कि सर आपने बताया कि 1 जुलाई 2022 से सर, जैसे कि आपने बोला कि प्लास्टिक बैन हो रहा है, और हम बद्दी बरोटी वाला की बात करें तो यहाँ पे जो सर हमारी जो मैकेनिकल इंडस्ट्रीज हैं और जो फूड इंडस्ट्रीज हैं और फार्मास्यूटिकल एरिया, उनमें तो सर प्लास्टिक का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। जैसे कि पैकिंग के लिए उनमें जो है प्लास्टिक यूज हो रहा है, और फार्मास्यूटिकल एरिया में जो मेडिसिन होती हैं हमारी, वो भी सर प्लास्टिक में ही आती हैं पैकिंग। तो उसका क्या अल्टरनेट है? लुक, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। एक तो सिंगल यूज प्लास्टिक हमने आपको कहा, तो जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसमें ये वाला जो वेस्ट है, क्योंकि हमें जो वेस्ट को बेसिकली वैल्यू अटैच करनी है, जिसको फेज आउट करना है, तो फेज आउट करने के लिए जो पूरा एक्शन प्लान जो है नेशनल लेवल पे नेशनल टास्क फोर्स के द्वारा बनाया गया इंडिकेटिव एक्शन प्लान, और उस एक्शन प्लान को हम इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट लेवल पे स्टेट टास्क फोर्स बनी है। अभी उसका किस डायरेक्शन में जाता है कि हम किस तरह से उस एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे वो तो अलग से एक बात है। लेकिन आपका कंसर्न जो बेसिकली है कि जैसे दवाइयां हैं या कोई भी किसी भी तरह का है, तो देयर आर टू टाइप ऑफ वेस्ट प्लास्टिक्स। एक वो है जो आपका वापस रिसाइकल नहीं हो सकता है,
और एक वो है जो रिसाइकल किया जा सकता है। तो जो रिसाइकल किया जा सकता है, तो ये जो रैग पिकर्स होते हैं, देर इज ए मैकेनिज्म हमारे यहाँ पे भी, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैकेनिज्म जो है, गाइडलाइंस उसकी नेशनल लेवल पे बनी हुई है, उसको ईपीआर गाइडलाइंस बोलते हैं। तो वो जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इन इंडस्ट्री वालों की, जो हमारे यहाँ पे जो ये सप्लाई चेन मेंटेन करते हैं, दुकान तक इनका जो मटेरियल आता है, चाहे वो प्लास्टिक का छोटा पाउच है, ये इन लोगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसमें फिक्स की जाएगी। और उसके लिए प्रदेश के अंदर बड़ी जल्दी एक हेल्प डेस्क जो है वो स्थापित किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर। तो आपको जब ये इन इस तरह के जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो सप्लाई चेन को मेंटेन करते हैं इस तरह के प्लास्टिक की, वो इनकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये अकाउंटेबल है उसके लिए, उसकी कलेक्शन के लिए वापस और डिस्पोजल के लिए। सर इसके लिए अल्टरनेट क्या लेके आ रही है गवर्नमेंट? जैसे लुक, सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए अल्टरनेट तो बहुत है, बट दे आर नॉट कॉस्ट इफेक्टिव एज ऑन डेट, सो दे पुट अ प्रेशर ऑन इकोनॉमिक साइड। लेकिन द गवर्नमेंट इज एक्टिवली वर्किंग ऑन दिस के वैक्स पेपर के ऊपर या कुछ और ऑप्शंस जो है उसके ऊपर काम किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के अंदर जैसे हमने कैरी बैग्स बंद किए थे, तो हमने सिर्फ बैन के ऊपर फोकस नहीं किया था, हमने इसकी सॉल्यूशंस भी जो है वो लोगों को दिए। जैसे हमने प्लास्टिक की कटलरीज, प्लेट और कटोरीज बंद करी थी, तो हमने पत्तल डोना को प्रमोट किया, और प्रदेश के अंदर हम लगभग आज तक हमने 300 जो पत्तल डोना मेकिंग मशीन जो है वो अलग अलग जगह पे डोनेट करके हमने पत्तल को जो है इंट्रोड्यूस कराया मार्केट के अंदर, पेपर प्लेट्स को इंट्रोड्यूस कराया मार्केट के अंदर। तो इस तरह के इनिशिएटिव्स जो है वो दिए जाते हैं। ऑप्शन जो थैले हैं उनके हमने सिंथेटिक थैले जो कम से कम रिसाइकल हो सके, बार बार लोग उसको यूज कर सकें, उस तरह के लॉन्ग टर्म वाले ऑप्शंस हमने कहा कि प्लास्टिक की जगह, कैरी बैग्स की जगह उनको यूज किया जाए। अब यस, प्लास्टिक इज ए इंटीग्रल पार्ट, इट इज ए मोर ऑफ मैनेजमेंट इशू। बैन इज नॉट ए सोल्यूशन, phasing out is not a solution. So how do we cater, how do we improve our management tactics and strategies that will really contribute us? So, Prithvi, you have raised your hand. Ask your question. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Good evening, sir. My question is with respect to glacial recedings. So, do we have any specific body which looks into the matters of glaciers? As we have seen many disasters formation of tarn lakes and release of methane, etc. Sir, isn't it the right time to set up a body or any institution which looks specifically into the matters of glaciers? As we have seen that it is prevention is better than cure. In Himachal Pradesh, we have a remote sensing cell under Department of Environment, Science and Technology. And that remote sensing cell is really monitoring it on day-to-day basis. And we have complete control kind of conditions where we do the research over the glaciers. And, we have complete inventory of these glaciers and what is happening to the glaciers, how the glaciers are receding, how they are retreating. So everything is being monitored by the state government on day-to-day basis. And rather, I would say there are certain, areas where we are monitoring it on 24/7 basis. And apart from that, for, these from disaster point of view, we have a state disaster management authority completely active in the state. And, कभी भी कोई भी इस तरह की नेचुरल क्लैमिटी होती है तो डिसास्टर जो हमारी जो स्टेट डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वो बहुत एक्टिवली डील करती है। अभी भी जब कोरोना हुआ था तो ये स्टेट डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी उसके अंदर एक्टिवली काम कर रही थी। सो वी हैव ए कंप्लीट सेटअप एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, एट तहसील लेवल। जो डिसास्टर मैनेजमेंट रिस्पॉन्स टीम्स हैं वो हमारी एक्टिव रहती हैं। और ये बहुत ही, जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे देन you'll also see कि भी किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो काम करती हैं, और हम लोगों के पास मिनट टू मिनट इंफॉर्मेशन होती है कि कहाँ पे कौन सी मूवमेंट किस तरह से हो रही है। जैसे पार्चू लेक जो मैंने आपको बताया था, जो चाइना के वहाँ पे एरिया में बनी है, लेकिन डिसास्टर उसका जब भी वहाँ से पानी निकलता है तो वो नुकसान हमें पहुंचाती है। तो उसकी हम 24/7 हर मिनट उसकी मॉनिटरिंग होती रहती है, उसके साइज को मॉनिटर करते रहते हैं, उसके पानी की लीकेज को मॉनिटर करते रहते हैं। सो दैट काइंड ऑफ अरेंजमेंट वी रियली
have in the state. All right. So glaciers के लिए we have system in place. Sir, I think we'll take one last question from Atul. Atul, please ask your question. Atul, can you hear me? अतुल, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं. Kindly unmute yourself. हेलो नमस्ते मैम. Yes Atul, we are listening you. सर मेरा क्वेश्चन था, मैं कुछ दिन पहले एक फ्रेंड के साथ डिस्कस कर रहा था. एक्चुअली एक एनजीओ और एक कंपनी में काम करते हैं. वो जो चीड़ और पाइन होता है सर, उसका जो आई थिंक उसको लेंटाइन्स बोलते हैं, जो छैन होता है लोकल लैंग्वेज में, उसका कुछ फ्यूल बना रहे हैं. तो सर हम डिस्कस कर रहे थे कि उससे तो एक तरह से बायोडाइवर्सिटी को खतरा भी, हम पूरी लैंड को बेयर कर लेते हैं. तो हम क्या इस तरह कोई सॉल्यूशन हो सकता है सर, जैसे कि जो सेटलमेंट के साथ जो फॉरेस्ट है वहाँ पे हम किसी तरह की स्प्रे करें और उसको हम कंपोस्ट में कन्वर्ट कर लें? इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सर आपका? जो मतलब जो छैन होता है हम उस पर स्प्रे करें और कंपोस्ट में कन्वर्ट करें उसे. पाइन नीडल्स की बात कर रहे हो आप? सॉरी सर, फॉरेस्ट फायर के पाइन लिए. नीडल्स की बात, फॉरेस्ट फायर के लिए जो सबसे जो बड़ा मतलब सबसे बड़ा रीजन तो ये रहता है फॉरेस्ट फायर का. ये क्वेश्चन आपसे 100% पूछा जाएगा इंटरव्यू के अंदर, और फॉरेस्ट फायर के ऊपर आपसे बात भी चर्चा भी की जाएगी. आप इसके लिए जरूर तैयार रहें. पाइन नीडल्स का जो एक सोल्यूशन उसमें ये है कि जो पाइन नीडल्स का जो हार्वेस्ट का जो इसका जो बेसिकली जब गिर जाती है तो इसका एक साइकिल होता है. आपने नोट करना कि जब भी फॉरेस्ट फायर होती है तो एक पर्टिकुलर पीरियड में होती है, आफ्टर 3 years, और इट रिपीट इन दैट एरिया आफ्टर 3 years. सो वो जो पाइन नीडल्स का जो एक लेयर है वो बनता जाता है. ये एक इंटरमीडिएटरी एक सोल्यूशन निकाला गया है डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट साइंस टेक्नोलॉजी की हिमकॉस्ट के थ्रू, कि इन पाइन नीडल्स को जैसे आप जैसे यंग रिसर्चर्स प्रपोज कर देते हैं तो उन्होंने, बिकॉज इसमें काफी ज्यादा एनर्जी होती है, इसमें काफी ज्यादा जो कैलोरीफिक वैल्यू जो है उन पत्तों की होती है, तो उसको मिक्स करके ब्रिक्स बनाई जाती हैं और उसको फ्यूल की तरह उसको यूज करने के लिए एक रिसोर्स उसको यूज किया जाता है. सो दैट इज द प्रैक्टिस विच इज फॉलोड. जो स्प्रे वाली आप बात कर रहे हैं, दैट इज वन सोल्यूशन, बट उससे हमारी फॉरेस्ट फायर जो है, क्योंकि ये पर्टिकुलर अगर उसको रिमूव टाइम से नहीं करेंगे, अब वो स्प्रे कब करना है, उस स्प्रे के लिए किस तरह की कंडीशन, नेचुरल कंडीशंस चाहिए ताकि वो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाए, उसको कलेक्ट करना इज अनदर पर्टिकुलर टाइम में उसको कलेक्ट करना बहुत जरूरी है. अगर आप एक सीजन में उसको कलेक्ट नहीं करेंगे, रिमूव नहीं करेंगे, तो फॉरेस्ट फायर बहुत जो इंसिडेंसेस वो बढ़ जाएंगे. तो फॉरेस्ट से वो नीडल्स जो है वो जो क्लियर करनी होती हैं वो टाइमली करनी पड़ती हैं. आपका जो रेनफॉल का सिस्टम है, जो हमारे जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, वो स्प्रे करके जो पर्टिकुलर केमिकल हम उसके ऊपर डालकर उसको कन्वर्ट करने की, इट इज लेबर इंटेंसिव, it is time intensive, time sensitive also, and that cannot work in our environmental conditions. वो एक पर्टिकुलर जगह उसको इकट्ठा करके दबा दें मिट्टी के अंदर, आई थिंक कंपोस्टिंग हो सकती है. लेकिन अगर आप ये कि पूरे फॉरेस्ट एरिया में अगर हम स्प्रे करके उसको करें तो दैट विल नॉट वर्क. थैंक यू सर. All right, all the aspirants, you would like to share your experience of having this so much of insightful session? Any one of you before we formally conclude it? आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच सर. और आपने काफी चीजें बताई जो हमें मतलब ना जिसको लेकर मुझे काफी डाउट्स थे. और एक लास्ट क्वेश्चन है कि एज अ सिविलियन अगर हमारे सामने या मेरे सामने कोई ऐसे हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट वगैरह कर रहे हैं, जो भी हम देखते हैं, तो उस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करें एक काम वे में? Will you repeat this? सर मतलब कि एक कि हम हमारे सामने कोई
पॉल्यूट कर रहा है एनवायरनमेंट को, तो हम उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें या कैसे अवेयर करें कि नहीं आप ये चीज मत करो। एनवायरमेंटल बहुत ही पोल्यूशन, काम लो। यस सर। एनवायरमेंटल पोल्यूशन कई तरह का होता है, एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग। अब वो एयर पोल्यूशन कर रहा है, वाटर पोल्यूशन कर रहा है, नॉइज पोल्यूशन कर रहा है, सॉइल पोल्यूशन कर रहा है, वेस्ट, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट से पोल्यूशन कर रहा है, या प्लास्टिक कैरी बैग से पोल्यूशन कर रहा है, तो वो रिप्लाई उसके अकॉर्डिंगली दिया जाएगा। राइट, अब आप एक पर्टिकुलर एरिया मुझे बताएं तो मैं उस पर आपको रिप्लाई बताऊं। सर प्लास्टिक एंड यस, सो प्लास्टिक जो पोल्यूशन है, अगर आपके सामने कोई इस तरह का पोल्यूशन कर रहा है तो आप उसको ये बता सकते हो कि प्रदेश के अंदर प्लास्टिक कचरा लिटर करने के ऊपर 1,000 रुपया इंडिविजुअल आदमी को कभी भी स्पॉट पे फाइन किया जा सकता है। उसके लिए पुलिस हवलदार से लेके कांस्टेबल से लेके डीजीपी तक सब लोग उसमें एम्पावर्ड हैं। फूड एंड सिविल सप्लाई के जो जो वहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं, एसडीएम है, डिप्टी कमिश्नर है, एडीएम्स है, फॉरेस्ट के जितने लोग हैं, वो सब लोग उसमें जो है वो चलान करने के लिए ऑथराइज है। और 1,000 रुपए का फाइन जो उसको स्पॉट पे किया जा सकता है, तो उसको यू कैन ऑलवेज सेंसिटाइज हिम कि ये देखिए ये प्रोविजंस हैं हमारे स्टेट के अंदर और ये नहीं किया जा सकता। यू कैन ऑलवेज सेंसिटाइज। आई थिंक इट इज टाइम कि हम सर की सर्विसेज और उनके एक्सपर्टीज नॉलेज को, आई थिंक सर टाइम सफिशिएंट नहीं होगा, हम फ्यूचर में फिर अवेल करें, सो दैट हम और आपने जो इंसाइट शेयर किए हैं, आई एम श्योर वो जो इन्वायरमेंटल एक एपैथी है वो जरूर सर आप हमारे एस्पिरेंट्स के एम्पैथेटिक एटीट्यूड में कन्वर्ट होगी। और सर जो आपने उसको कंसोलिडेट किया है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से, कैसे पॉजिटिव अप्रोच से, सोल्यूशन और ओरिएंटेड अप्रोच से पैनल को फेस करना है, स्टूडेंट्स के पास अब जो अपडेटेड स्टैटिस्टिक्स है, आई थिंक ये अब ज़्यादा एम्पावर्ड है। बेसिक इंटेलिजेंस तो इनके पास है ही, बट आज आपके सेशन से इनका इकोलॉजिकल इंटेलिजेंस जो है आपने बहुत ज़्यादा एनहांस किया है। बट सर इसके साथ ये भी और क्यूरियोसिटी है और जानने की और ज़्यादा इंटरेक्शन करने की, तो उसके लिए सर हम आपकी सर्विसेज को जो है फ्यूचर में ज़रूर अवेल करेंगे। एस्पिरेंट्स विल बी very very benefited with this. So on the behalf of them, sir, on the behalf of the institute, please accept our immense gratefulness and gratitude to you. इतना ज़्यादा समय आपका ले लिया है हमने, तो और जो इनको बेनिफिट हुआ है तो अब पूरा इनका they have prepared their whole notes and updated material on that, besides their ecological sensitivity. Thank you so much. No, I'm really, I wish, the NITTR a very successful, time ahead and lots of achievements, ranking high and high in the results. And all the aspirants who are appearing for I wish them very good luck and best wishes to them for appearing before the interview board. And for the other aspirants who are preparing for the test, they are also given best wishes. And we look forward to meet you on board as bureaucrat, a young bureaucrat in the state. Thank you very much. Thank you very much, ma'am. All the best to you all. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, 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 sir.